أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا. الحمدللہ قرآن سمجھنے کے لیے آج ہم پھر سے اکٹھے ہوئے ہیں. لیسن 18 اینڈ 19 18 اور 19 آج ہم مکمل کریں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 20 کل اسباق ہیں، جن میں سے اگر ہم 19 اسباق مکمل کر لیں تو QC1 کا جو کلیم ہے 50% قرآن کے لفظ 50% سے بھی زیادہ سمجھنے کا وہ مکمل ہو جاتا ہے. اور QC1 یعنی اس قرآن کورس 1 کے جتنے بھی کانسیپٹس ہیں وہ سارے آج مکمل ہو جائیں گے. لیسن 20 صرف ایک ایکٹیویٹی ہے جس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ وینسڈے کو، نیکسٹ بدھ کو ہم ریویژن کے ساتھ اسٹڈی کریں گے. اس ایکٹیویٹی سے ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن سے یہ 50% لفظ ڈھونڈنے کیسے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آج ایکچوئل جو ہمارے کانسیپٹس ہیں وہ ساری چیزیں آج ہم مکمل کر لیں گے. تو آج کے یہ 2 گھنٹے ہمارے لیے بہت خاص ہیں. آپ اپنی پوری توجہ کے ساتھ کلاس میں موجود رہیں. امید ہے جو سسٹرز ابھی کلاس میں موجود ہیں وہ سب خیریت سے ہوں گی. اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ لائیو کلاس میں جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، جو کنیکشن ہوتا ہے، اس سے انسان زیادہ سیکھتا ہے. تو اگر تو کوئی بہت ہی جنون مجبوری ہے تو پھر کلاس کو مس کر کے ریکارڈنگ پر جانا چاہیے. صرف آرام کی غرض سے نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ بات وہی ہے جس کو ہم ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں کہ دین کا کام، قرآن کو سمجھنے کا کام، سمپل بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے وقت نکالنا یہ بہت آنر کی بات ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، رائٹ؟ تو یہ خیال رکھنا کہ یہ تو شاید فراغت کی بات ہے، جب فارغ ہوں گے تو کر لیں گے. یہ کانسیپٹ جو ہے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے لیے وقت نکال رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا سمجھ رہے ہیں، ہمارا ایمان کہاں ہے. یعنی میرے بندے کو جس کی زندگی، جس کا رزق، جس کی ہر چیز میری مرہون منت ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہی ہوں گے نا کہ یہ بندہ میرے لیے وقت اب نکالتا ہے جب باقی کاموں سے اس کو ٹائم مل جائے. تو وہ کتنا قابل قبول ہوگا، ہمیں یہ سوچنا چاہیے. ہاں، لیکن اگر جینون ریزنز ہوتی ہیں، واقعی کچھ ایسی کمٹمنٹس ہیں جن کو اس وقت پر ہی کرنا ضروری ہے، تو پھر آپ کو ریکارڈنگ سننی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری جو بھی ایفرٹس ہیں وہ قبول فرمائے. تو آئیے قرآن سمجھتے ہیں آسان طریقے سے. اور ہم جیسا کہ جانتے ہیں کہ یہ آسان انداز تعلیم قرآن کا ہمیں الفلاح منزل E11 4 اسلام آباد پاکستان سے معلوم ہوا، اور ہم اپنا وقت یہاں پر لگا رہے ہیں. میں اور آپ ہم سب مل کر سیکھ رہے ہیں اور سکھانے کی طرف بھی اپنی ایفرٹس پٹ کر رہے ہیں، کرنی بھی چاہیے. اور اب تک ہم نے لیسن 1 سے 17 تک مکمل کیے ہیں. پچھلے بدھ کو ہم نے نماز مکمل کرنے کے ساتھ کافی ساری صورتیں تو مکمل کر ہی لی تھیں، جیسے سورۃ الفاتحہ آلریڈی شروع میں کر لی تھی، پھر سورۃ الاخلاص ہے، پھر الناس، الفلق، العصر، النصر، الکافرون. اور اس کے بعد ہم نے نزول قرآن کا جو مقصد ہے، اللہ نے بتایا ہے کہ میں نے قرآن نازل کیوں کیا ہے. وہ مقصد اگر تم حاصل نہیں کر رہے تو پھر اس کا مطلب ہے تم اپنی زندگی کو کیا ہی کنیکٹ کر رہے ہو قرآن سے، تم نے تو ضائع کر دی. تو اس بات پر ہم نے بڑے اچھے سے ڈسکس کیا تھا. امید ہے آپ لوگوں نے، جو لوگ پریزنٹ نہیں تھے انہوں نے ریکارڈنگ کے تھرو وہ معلومات ضرور حاصل کر لی ہوں گی جو ہر مسلمان کے لیے سمجھنا اور ان کو پورا کرنا ضروری ہے. اسی طرح اگر ہم گرامر کی بات کریں تو ہم نے گرامر میں آپ دیکھ رہے ہیں پہلی لائن جو مکمل آپ کو نظر آ رہی ہے جس میں ٹیبل ہے، پھر اسم فعل حرف کی ڈیفینیشن آ گئی، پھر اسم کی بات ہو رہی ہے، عام اور خاص اسم، پھر مذکر سے مذکر واحد سے جمع بنانا، پھر ایک اور ٹیبل آ گیا. تو یہ سارے اسم کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اسی طرح مذکر سے مؤنث یہ بھی اسم کی کیٹیگری میں ہے. پھر اگر ہم حروف کی بات کریں تو اس میں یہ ہمیں 9 الفاظ دکھائی دے رہے ہیں، جن میں سے آخری 2 مع اور عندہ حروف کی کیٹیگری میں کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اصل میں اسم ہوتے ہیں. یہ ڈیٹیل ہم سمجھ چکے ہیں پہلے. اور اسی طرح لاسٹ میں جو اسماء اشارہ کا ٹیبل ہے یہ بھی اسم ہے. حروف جر کی 4 باتیں بھی ہم نے سیکھی تھی.
اور سب سے لاسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں فعل کے بارے میں ہم کیٹیگریز کو سمجھ رہے ہیں. عربی میں ٹینسز آپ سمجھ لیں، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، یعنی فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر. آج بہت ہی خاص چیز ہم سمجھیں گے جو نہ ماضی ہوگی، نہ مضارع ہوگی، نہ امر ہوگی، لیکن انہی کے ٹیبل سے کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے. تو آج انشاءاللہ لیسن 18 اور لیسن 19 کے بعد ہمارا جو فعل کا ٹیبل ہے وہ مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو آگے بڑھتے ہیں. دس از لیسن نمبر 18. 18ویں سبق میں آپ کو 3 باتیں بتاؤں گی جو ابھی آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں. پہلی بات، ہم بات کریں گے ثبوت کے ساتھ کہ قرآن آسان ہے. دوسری بات، اس کا سیکھنا بہترین کام ہے. بہترین سے مراد یہ کہ کوئی اور چیز اس سے بہترین نہیں ہے. تیسری بات کہ جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں، چاہے وہ یہ بہترین کام ہو قرآن سیکھنے کا، اس کے پیچھے ہماری نیت کیا ہے، اس کے اکارڈنگلی وہ عمل، وہ اچھا عمل قابل قبول ہوتا ہے اللہ کے نزدیک. اگر ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے نیت ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہوتی. یہ بہت سینسٹیو میٹر ہے ہمارے دین کا، ہم اس پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے. اور پھر گرامر کے جو رولز ہوں گے ان کو ہم بعد میں دیکھیں گے. الحمدللہ ابھی لیسن 18 کے بعد ہمارے 222 لفظ ہو جائیں گے اس کورس میں، جو 40,000 سے زیادہ قرآن میں آئے ہیں. اس بارے میں ہم آخر میں بات بھی کریں گے. جی تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم. کون سے سسٹر یہاں مجھے بتائیں گی جنہوں نے دھیان سے سنا ہے کہ کون سی 3 چیزوں پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں ابھی؟ کوئی جی بتا سکتا ہے؟ سسٹر، سسٹر پہلے تو آپ ایک منٹ، آپ نے ہینڈ ریز نہیں کیا، کوئی بات نہیں، لیکن آپ کا نام ہو تو میں آپ سے بات کرنے کا کہوں. انفینکس 030 کون ہے؟ سسٹر انفینکس 030 آ رہا ہے، آپ کا نام نہیں آ رہا، پلیز اپنا نام بتا دیں. سسٹر آئی تھنک سسٹر کو سمجھ نہیں آیا یا آئی ڈونٹ نو. سسٹر امبر سلطانہ آپ بتا دیں آپ کا مائک کون ہے. جی، ثبوت کے ساتھ ہم آج سیکھیں گے کہ قرآن آسان ہے، اور سیکھنا، قرآن پاک کو سیکھنا بہترین کام ہے. اس سے بہتر کوئی کام بھی نہیں ہے. جو بھی ہم عمل کریں اس کے پیچھے ہماری نیت کیا ہے، نیت صحیح ہونی چاہیے. یہ ویری 3 نائس، کام ہم آج سیکھیں گے. ویری نائس. سسٹر امبر اللہ آپ سے راضی ہو، اور تمام سسٹر جو اس وقت ایکٹیو ہیں ماشاء اللہ. بالکل صحیح بات ہے. تو پہلی بات ابھی سسٹر نے بتائی، ہم دیکھیں گے کہ قرآن آسان ہے. میں آپ سے کسی بھی طرح سے کہہ دوں کہ قرآن آسان ہے، میں آپ کو لکھ کر دے دوں، میں آپ کو کہانیاں سنا دوں، میں اپنا ایکسپیرینس بتا دوں، آپ کیوں یقین کریں گے؟ شاید تھوڑا بہت یقین کر لیں، تھوڑا بہت کہیں کہ ہاں شاید ایسا ہو. نہیں کریں گے نا، کیونکہ میں آپ ہم تو ایک ہی ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ خود کہتا ہو پھر تو یقین کے علاوہ کوئی اور بات رہتی ہی نہیں، شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو میں نہیں کہہ رہی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ القمر میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. فہل میں مدکر، آپ سوچے اللہ کی صدا آ رہی ہے، پکار ہمارے لیے، ہمیں ہماری طرف پکارا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں قرآن میں. کوئی ہے جو سوچے سمجھے؟ اور ہم اگر سن کر کہ جی اے اللہ، اے میرے رب، میں موجود ہوں، میں حاضر ہوں، تو کیا زبردست بات ہے یہ. اور اگر انسان کوئی تو سن کر دائیں نکل جائے اور کوئی بائیں نکل جائے کہ میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، آئی ہیو ادر ورکس ٹو ڈو، فیملی کے بہت کام ہیں، بزنس کے کام ہیں، جاب بہت ساری، وہی میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو بات یہ ہے کہ وہی فیملی، وہی بزنس، وہی جاب سب اللہ کے دیا ہوا ہے. تب تک ہے جب تک اللہ نے حکم دینا ہے، جب چاہنا ہے واپس لے لینا ہے. اور اسی لیے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو. رائٹ. تو یہ سمجھنے کی بات ہے. کوئی پرابلم نہیں ہوتا جس نے وقت نکال، جو ارادہ کر لیتا ہے نا، جو سمجھ لیتا ہے، جس کے دماغ میں لاجیکلی سمجھ آ جاتی ہے کہ سمجھنا کتنا ضروری ہے قرآن کو. ٹھیک ہے. اور جس کے دل میں وہ کنیکشن، وہ جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے پاس وقت نکل آتا ہے، وہ چاہے جتنی بھی مصروفیت میں ہو، اور جس کے پاس یہ چیز نہیں ہو اس کا وقت کبھی نہیں نکلتا، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے. تو بڑی بات، سب سے بڑا ایکسکیوز یہی ہوتا ہے کہ مشکل ہے، مشکل ہے، ہم کیسے سمجھیں گے، ہم نے تو کبھی عربی بولی نہیں گھر میں، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بات جو قرآن میں آتی ہے وہ جنرلی سب کے لیے ہوتی ہے. دنیا میں سینکڑوں زبانیں بولی جاتی ہیں،
رائٹ، قرآن تو عربی میں آیا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ بات جانتے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو اللہ جانتا ہے کہ میں نے اپنے پیدا کیے ہوئے انسان میں اس میں کتنی صلاحیت ہے سمجھنے کی، کتنا وہ دماغ میں نے اس کو دیا ہے، وہ استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کیسا اس کو دل دیا ہے۔ اسی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو قرآن میں نے بھیجا ہے وہ بھی میری طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے، اور جو تم ہو، تمہارے اندر جو صلاحیت ہے وہ بھی میری بھیجی ہوئی ہے۔ میں تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں ان دونوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ قرآن کو ذکر کے لیے آسان بنایا گیا ہے، تمہارے لیے آسان ہے، ٹھیک ہے۔ ان لفظوں کو ذرا دیکھ لیتے ہیں، وَلَقَدْ و لَقَدْ، وا اور لا البتہ، قد تحقیق، جس چیز میں ریسرچ ہو چکی، مطلب کوئی اب ڈاؤٹ کی بات ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ یسرنا، آسان کیا ہم نے۔ یہ یسرنا کیسے ہے؟ جیسے ہم نے فعل کے ٹیبل آپ لوگوں نے ایک دو ہفتوں میں پڑھے ہیں، دو تین ہفتوں میں، تو آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پڑھا تھا فعلا سے فعلنا، ہم نے کیا کوئی بھی کام، نصرا نصرو نصرتا نصرتو نصرتم، نصرنا ہم نے مدد کی۔ پھر ہم نے سمعا کا ٹیبل پڑھا، سمعا سمعو سمیتا سمیتو سمیتم، سمعنا ہم نے سنا۔ اسی طرح سے آتا ہے یسرنا، ہم نے آسان کیا۔ یہ ٹیبل ہم نے پریکٹس ابھی نہیں کیا، لیکن آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ یسرنا ہم نے آسان کیا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی میں پہلے بتا چکی ہوں، ذکر کر چکی ہوں کہ بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ اپنے لیے ہم کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ انداز بیان ہوتا ہے خاص، ایک عظمت جس میں کبریائی محسوس ہوتی ہے۔ دنیا میں مخلوقات میں بھی یہ رویہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بادشاہ سلامت ہوتا ہے یا کسی کے پاس اتھارٹی ہے اور اس نے کوئی بڑا حکم صادر کرنا ہے یا کوئی وقت کی بات کرنی ہے، تو اکثر وہ کہتے ہیں ہمارا حکم ہے کہ یہ کیا جائے، حالانکہ وہ ایک ہی شخص ہوتا ہے۔ تو یہ تو مخلوق کہہ رہی ہے، وہاں تو رب ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سی جگہوں پر اپنے لیے جب بات کرتے ہیں تو ہم کا صیغہ بھی استعمال کرتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، لیکن ہم سے مراد اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے یسر، آسانی، اور عسر، مشکل، ٹھیک ہے۔ تو جیسے آپ نے اس کو نا، یہ مکس نہیں ہونا چاہیے، آپ کو میں ایک ٹپ دیتی ہوں۔ ٹپ یہ ہے کہ جیسے ان دونوں کو بولنے میں سے ذرا کوشش کریں عربی کے حساب سے، یسر، عسر، کون سا لفظ آسان ہے؟ یسر، یسر بولنا آسان، یسر، عسر کے لیے آپ کو پتہ ہے آئین کی جو آواز ہے عربی میں، اس کے لیے آپ کو گلے میں سے آواز نکالنی ہوتی ہے، جو صحیح تجوید پروننسیشن ہے عسر، اس پہ محنت ہے نا۔ تو اس طرح سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں تاکہ دونوں معنی مکس نہ ہو۔ یسر جو آرام سے بولا جا رہا ہے وہ آسانی کا معنی دیتا ہے، اور عسر کا مطلب ہوتا ہے مشکل، یہ عربی کے لفظ ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے، تو یسر سے ہی یسرنا ہم نے آسان کیا بنتا ہے۔ اور القرآن، قرآن جو ہے یہ اس کتاب جس کو ہم پڑھتے ہیں، اللہ کا کلام، اس کے لیے یہ لفظ خاص ہے۔ ویسے تو صفاتی نام اور بھی ہیں، لیکن اصل نیم جو دیا گیا ہے وہ قرآن ہے، جس کا معنی ہے بہت پڑھی جانے والی، یعنی جو کتاب ہے یہ بہت پڑھے جانے والا کلام ہے اللہ کا، رائٹ۔ تو سبحان اللہ، آپ یہ بھی انفارمیشن ہمیں ہونی چاہیے کہ اس کے نام میں ہی یہ معجزہ ہے کہ اس وقت دنیا میں یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب تو ہے، لیکن کچھ عرصے سے پریکٹس ایسے ہونے لگ گئی کہ ہم اس کتاب کو پڑھ تو ابھی بھی بہت رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ یاد کی جانے والی کتاب ہے، کوئی اور نہیں ہے دنیا میں، سبحان اللہ۔ لیکن اس کے باوجود سب سے کم سمجھی جانے والی بھی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا اس بات کے بارے میں بتا رہی ہے، رائٹ، کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، تو نام سے یہ بات ثابت تو ہو گئی، یہ بہت بڑی بڑی بات ہے، رائٹ۔ لیکن ہم نے پڑھنے کے معنی کو پچھلے کئی جنریشنز کی پریکٹس میں ایسے کر لیا ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہم کیا پڑھ رہے ہیں، پھر بھی ہم اس کو پڑھنا کنسیڈر کرتے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، رائٹ۔ کیونکہ دنیا میں کوئی بھی اور کتاب ہو کسی زبان میں، اگر آپ پڑھ رہے ہو، کوئی آپ سے پوچھے کہ اس میں کیا لکھا ہے، آپ نے اس کو پڑھ لیا، آپ کہیں گے جی۔ کوئی آپ سے پوچھے اس میں لکھا کہ، آپ کہیں گے مجھے نہیں پتا، مجھے زبان نہیں آتی، تو وہ سامنے والا ہنسے گا کہ پڑھا کیا ہے پھر آپ نے، اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے۔ ایسے یہ پڑھنا تھوڑی ہوتا ہے، صرف قرآن کو ہم اس طرح پڑھ کے سمجھتے ہیں پڑھ لیا، یہ ذہن بلڈ پچھلی کئی جنریشنز میں یہ چیز ہمارے اندر آ گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پڑھنے کا بھی حق ادا صحیح سے نہیں ہو رہا ہے جب آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی جب تک، خیر۔ لیکن الحمدللہ وہ بھی ایک ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، اصل جب ہم تلاوت کریں تو ہمیں پتہ چلے کہ کیا کہا جا رہا ہے، اسی تک پہنچنے کے لیے ہم یہ ایفرٹ کر رہے ہیں، میں اور آپ، ٹھیک ہے۔ خیر، لے ذکر، لی کا مطلب ہے لیے، ذکر کا مطلب ہے ذکر، رائٹ۔ اب یہ جو ذکر ہے عربی میں، اس کا معنی یاد کرنا بھی ہوتا ہے،
समझना और नसीहत लेना भी होता है। तो याद करने से मुराद हिफ्स करना है। सुभान अल्लाह, हम जानते हैं बहुत छोटी एज के बच्चे हमारे हिफ्स कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? कोई जादू तो नहीं होता उन पर। इसका मतलब है ये हो सकता है, सिर्फ वक्त देना है, आपको इरादा बनाना है। अगर हम इतनी इतनी बड़ी मोटी मोटी किताबें डॉक्टर बनने के लिए और यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है पढ़नी है। कुरान को हमने सोचा ही नहीं कि हमें पढ़ना है, कोई ज़रूरत है, इसलिए हमें लगता है बहुत मुश्किल है। 10 10 किताबें, 20 20 किताबें हम पढ़ रहे हैं एक एक सेशन में, लेकिन एक कुरान हमसे पढ़ा नहीं जा रहा। तो सोचें कि ये प्रॉब्लम हमारी इंटेंशन में, नीयत में है या असल में है। सोचने की बात है। और फिर जिक्र का दूसरा मानी अरबी में है समझना और नसीहत लेना। तो ये सारे मानी जिक्र में आ जाते हैं। इसका मतलब है कि इन सब के लिए कुरान आसान है, अल्लाह ने फरमाया। लेकिन लेकिन यहाँ एक और पॉइंट याद रखें, ये जो हम फतवे निकालते हैं, अहकामात निकालते हैं, उसके लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत है। जो होता है ना कि हाँ ठीक है मैंने पढ़ लिया, आप किसी के कोई मसाइल हैं, आपका अच्छा नहीं कुरान में ऐसे है, तो फिर इसके लिए ये करना होगा आपको। तो फतवे का के जो मामलात हैं उसके लिए अगर आप उस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं तो फिर आपको और ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे माशाल्लाह उलमाए कराम अपनी ज़िंदगियां मख्तस करते हैं, कई कई साल के कोर्सेज करते हैं। फीमेल्स भी, हमारी मेल्स भी, ब्रदर्स और सिस्टर्स कितने लोग हैं माशाल्लाह। तो ये बहुत बड़ी बात है, उसके लिए मेहनत करनी होगी। तो ये नहीं कि अगर आप समझ रहे हैं, याद कर रहे हैं, आप दूसरों को भी बताएं उस हद तक। लेकिन जहां मामलात फतवे देने के आ जाता है या इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये कोशिश ना करें कि अब आपको वो चीज़ पता ही नहीं है और आप कहें नहीं जी मैं तो खुद से बता दूं। ये गलत है। तो बहुत ऑथेंटिक चीज ही आप आगे डिलीवर करेंगे। ठीक है, उसके लिए आप कहेंगे कि आप मुफ्ती नहीं हैं, आपने इस हद तक चीजों को नहीं आपने स्टडी की है, तो आप किसी ऐसे एक्सपर्ट के पास जाएं, स्पेशलिस्ट। हर फील्ड के स्पेशलिस्ट के पास हम जाते हैं ना, डॉक्टर के पास भी जाना तो कहते हैं स्पेशलिस्ट होना चाहिए। बच्चे ने ट्यूशन पढ़नी है तो मैथ्स का स्पेशल टीचर होना चाहिए जो एक्सपर्ट हो। तो दीन के मामले में भी हम दूसरे को ये नहीं कहेंगे हाँ जी मैंने कुरान पढ़ा है, आप मुझसे वो मामलात पूछें जो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, तो मैं उसके बारे में आपको जवाब नहीं दूंगी। मैं यही कहूंगी कि आप उलमा से पूछें। मैं जो जो लिमिटेड जिसमें मैंने एक्सपर्टीज हासिल की है या मैं कर रही हूँ, मैं आपको सिर्फ उसके बारे में बात करती हूँ, उससे आगे की इजाजत नहीं है। गलत है, क्योंकि मैं गलत बात क्यों डिलीवर करूँ जो मुझे खुद ही मालूम नहीं है अभी। ठीक है, तो कम से कम ये तो सबका हक है ना, सबके लिए जरूरी है कि वो याद कर रहा हो, वो समझ रहा हो, नसीहत हासिल कर रहा हो। इस पर तो काम हम कर सकते हैं, अल्लाह ने कहा है ये आसान है। ठीक है, सुभान अल्लाह। तो अब अगर आसान है, अल्लाह ताला ने अगर इमेजिन करे ये किताब मुश्किल बनाई होती तो क्या होता? अल्लाह ताला कहते कुरान मुश्किल है लेकिन तुम्हें समझना है, तो हम कुछ कर सकते थे? नहीं, ये अल्लाह का करम है कि उसने कुरान भेजा और कहा आसान है। आसान है, साबित हो रहा है ये। टाइम दे तभी पता चलेगा ना, प्रूफ होगा। राइट। तो अगर अल्लाह ताला मुश्किल बनाते तो भी याद करना पड़ता, ये तो अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने आसान बनाया है। तो कम से कम इसका शुक्र अदा करना चाहिए हमें। और शुक्र का भी अमली तकाजा ये है कि अगर आसान है तो फिर हमें करके दिखाना है। ये शुक्र का भी कभी तकाजा है। आसान है फिर भी नहीं उसका जिक्र का हक अदा कर रहे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अगर अब भी कोई ये कहे अल्लाह के कहने के बाद कि कुरान तो मुश्किल है, तो इसका मतलब है वो अल्लाह की बात के खिलाफ बात कर रहा है। ऐलान है कि अल्लाह ने तो ये कहा है आसान है, मैं कह रहा हूँ मुश्किल है। तो हम ऐसा कर सकते हैं? कभी नहीं। कुरान आसान है, ये और बात है हम अपने जहन को अभी वहां ला नहीं पा रहे, फोकस नहीं कर पा रहे, अपने वक्त को मैनेज उस तरह से नहीं कर पा रहे, या हमारी शायद किसी वक्त हम थके हुए हैं, तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है ना। तो ये अलग बात है, लेकिन कुरान मुश्किल नहीं है, अल्लाह ने फरमा दिया, दैट्स इट। इससे अगली कोई बात हो ही नहीं सकती। ठीक है। दूसरी बात ये कि देखिए आसान काम को करने के लिए भी कुछ करना पड़ता है। आसान काम भी खुद ब खुद हाथ पे हाथ रख के बैठे तो हो नहीं जाता। जैसे थोड़ा सा हल्के माहौल में आते हैं, दो चीजों के बारे में पूछती हूँ, जरा मुझे सच्ची सच्ची जवाब दें। एग बॉयल करना आसान है या बिरयानी बनाना? ये बताएं जरा मुझे। एग बॉईल बिरयानी करना बनाना। आसान है। कौन से सिस्टर को बिरयानी अच्छी एग बॉयल आसान लग रही है? एग उनसे बिरयानी खाते हैं जरा, मेरा ख्याल है। मी। ऑफ कोर्स एग बॉयल करना आसान है। तो एग बॉयल करना अगर आसान है तो क्या ऐसा होता है कि आप डाइनिंग पर बैठे हो और एग जो है वो खुद ब खुद बॉयल होकर आपके मुंह में आ जाए और पेट में चला जाए? नहीं ना, उसके लिए भी काम तो करना पड़ता है। आपको उठ के जाना पड़ता है किचन में। आप केटल जिसमें आपने बॉईल करना है उसमें आप एग निकालेंगे, उसमें डालेंगे, उसको ऑन करके, और सब कुछ जो है वो हीट पर आप उसे रखेंगे, टाइम देखेंगे, फिर उसको निकालेंगे, ऊपर से उसके छिलके उतारेंगे, फिर आप उसको जो भी आपका टेस्ट है, आप अगर उस पर कुछ लगाना चाह रहे हैं, सॉल्ट या कुछ,
लगा कर वापस आकर बैठेंगे, फिर उसे तोड़ तोड़ कर खाएंगे। मेहनत तो है ना, ये एक आपको छोटी सी मिसाल दे रही हूँ। आसान का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं जो एबिलिटी तुम्हें दी है ना, उसके सामने ये तो बहुत आसान है, तुम तो बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हो। मैंने तुम्हें पैदा किया है ना, अल्लाह ताला कह रहे हैं। तो ये किताब तुम्हारे लिए आसान है, बट यू हैव टू पुट एफर्ट। दुनिया में किसी भी काम के लिए तो तुम अपनी जान मार रहे हो, सोचो जरा कौन कौन से काम है वो। और किताब को समझने के लिए तुम इतना सा भी कुछ नहीं करना चाहते, ये चाहते हो या तो कोई घोल के दिमाग में डाल दे, या फिर हम नहीं कर सकते। तो ठीक है, तुम्हें पता चल जाएगा फिर। ठीक है। सो खैर, आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। हमें यकीन होना चाहिए, हो जाना चाहिए, जब अल्लाह ने फरमा दिया आसान है तो आसान है। अब आगे हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है। दूसरी बात हमने ये करनी है कि ये ना सिर्फ आसान है, बल्कि अल्लाह ने कहा बेहतरीन काम है। बेहतरीन काम इसलिए है, आप दुनिया की बहुत सारी लिस्ट बनाएंगे, नहीं नहीं, बेहतरीन काम है गरीबों की मदद करें। यस। बाहर इतने सारे लोग हैं, उनके पास खाने को खाना नहीं है, ये चीजें डिस्कस होती हैं। उनके पास पहनने को कपड़े नहीं है, आप कह रहे हो बस कुरान पढ़े जाओ, पढ़ाए जाओ। आपको पता है ये भी डिस्कस होता है। मतलब आपको कौन बता रहा है कि गरीब है उसको खाना खिलाना है? आपको कौन बता रहा है ये? कुरान जो है वो पूरा लाए अमल देता है। आपकी पैदाइश से आपकी मौत तक बीच में जो जो काम होने हैं, वो निजाम अगर कुरान के मुताबिक बनेगा तो सबको उनका हक भी मिल जाएगा, सब चीजें मैनेज होंगी। लेकिन क्योंकि दुनिया में उस पर अमल किया नहीं जाता तो चीजें खराब होती हैं। यानी आप जो अपने इस दिमाग इस्तेमाल कर रहे हो, आपको क्या लग रहा है ये सारी चीजें रब की तरफ से आई है ना? कुरान ही तो आपको बताएगा। सो आप ये सही इल्म लोगों को दोगे तो लोग दूसरों का हक नहीं खाएंगे ना, तो बाहर आपको नहीं नजर आएंगे गरीब। राइट। सो दिस इज द बेसिक थिंग, कि आप कुरान को सीखो और सिखाओ, दोनों काम करो। सिर्फ ये नहीं कि आपने एतकाफ कर लिया और बस अपने लिए तो जन्नत के रास्ते आप संवार रहे हैं, लोगों के लिए कुछ नहीं किया। अल्लाह को नहीं पसंद है ये बात भी। अल्लाह को पसंद है मेरे दीन को आगे स्प्रेड करो। ठीक है। तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए उसको। ये हदीस मुबारक है, नबी की हदीस है। खैर, अच्छा, बेहतरीन के मानों में आता है। कुम, तुम में। हु, हुम, का, ये, कुम, तुम्हारे, तुम सब। एंड ना, हम, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। ओके जी। मन, मन का मतलब होता है जो, क्या, दोनों मानों में आता है। मन जैसे इंग्लिश में हु होता है ना, हु कौन भी होता है, जो भी होता है, इसी तरह अरबी में मन होता है। मन रबू का, कौन है तेरा रब? कहते हैं ना कब्र में पहला सवाल पूछा जाएगा, तुम्हारा रब कौन है? ठीक है। ओके जी। तो मन के दो मानिए हु की तरह से आते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। तअल्लम अल कुराना, जो कुरान सीखे, यानी सीखता है जो कुरान। तअल्लमा सीखने के लिए है, और अल्लमा सिखाने के लिए है। अब आइन लाम मीम से पहले अगर ता आ रहा है तो याद रखें कि वो सीखने की बात हो रही है, और अगर ता नहीं आ रहा तो सिखाने की बात हो रही है। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला सीखने वाले को पहला क्रेडिट दे रहे हैं। तो इस क्लास में आपको पहला क्रेडिट मिल रहा है, मुझे बाद में मिल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। होता है। क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल ऐसा ही है। क्या अल्हम्दुलिल्लाह। आसान क्या है दोनों में से आपके ख्याल में? कुछ सिखाना सीखना या मुश्किल है, हाँ सीखना नहीं, आसान है। आसान है। सिखाना मुश्किल है का, क्योंकि सिखाना आप तो मुश्किल? बता दो। नहीं नहीं नहीं, दोनों काम मुश्किल है। सिखाना हाँ इसलिए नहीं मुश्किल है मुश्किल क्योंकि आपने सही सीखा नहीं। अगर आप सही हम्म, सीखेंगे तो सिखाना क्यों मुश्किल होगा? सिखाना इज नॉट मुश्किल। ठीक है। सीखना बिल्कुल। मुश्किल है, अगर आपने पूरी तरह सब रूल्स वूल्स सीख लिए हैं तो सिखाना क्या मुश्किल है? मेहनत तो आपने तब की थी जब आप सीख रहे थे, अब तो आपने डिलीवर करना है। सो ये खैर इस पे सोचने की बात है। लेकिन तो आप ये देखें कि जिसमें एफर्ट ज्यादा है उसके साथ हरूफ जो है वो ज्यादा आए हुए हैं। तो अल्लामा सीखा, अल्लामा सिखाया। अगर सिखाने में मसला आ रहा है, इसका मतलब है आपको सीखने की मजीद जरूरत है। तो बात तो वही सीखने पे चली गई। दिस इज द पॉइंट। तअल्लम अल कुरान, जो कुरान सीखे, व अल्लमा हुआ, और अल्लमा सिखाया। अब आ गया, पहले सीखा फिर सिखाया। हु, उसको, किसको? कुरान को। अस्सलाम यानी वालेकुम। वो तुम में से बेहतरीन शख्स वो हैं। तो अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे, मतलब दुनिया में जो अल्लाह ताला ने भेजे हैं इंसान, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला के नबी ऑफ कोर्स अल्लाह के बिहाफ पर, कि तुम सब में से दी बेस्ट हैं वो जो कुरान सीख और सिखा रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। तो मुझे अस्सलाम और आपको तो वालेकुम। कोशिश करनी चाहिए कि हम उनमें से हो जाएं। आवाज सिस्टर कमल प्लीज आवाज अपना आ रही माइक है? बंद कर लीजिए। हाँ जी। प्लीज इस बात का ख्याल रखें कि ड्यूरिंग क्लास आपके माइक्स बंद हो, ताकि आपके घर की आवाज जो है वो सबको ना आ रही हो। सिस्टर कमल नहीं इजाज, नहीं बोल। आपका माइक बंद कर देती हूँ, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। ओके। तो यानी पहले आपने कुछ सीखा है,
और फिर आपने उसको सिखाया है जिसको ऑफ कोर्स इल्म नहीं था। राइट। तो अब तक दुनिया में सैकड़ों क्लासेस में आपने हाजिरी दी होगी, आपने कहाँ कहाँ स्कूल्स में, मदारिस में आप माशाल्लाह कुरान भी पढ़ने गए होंगे। आपने, आप बहुत सारी जगहों पे, कोई फन सीखता है, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहा है, हमारी क्लास में भी मुख्तलिफ चीजें सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कायनात को जितना सीखेंगे उतनी रब की बड़ाई मालूम होगी, है ना। तो इस वक्त दुनिया में, इस वक्त भी बहुत कुछ लोग सीख रहे होंगे, बहुत सारे फन, बहुत सारे उलूम, लेकिन उन सब में वो लोग जो कुरान सीख और सिखा रहे हैं वो दी बेस्ट हैं। इल्म नाफे तो वैल्यूएबल है, वो तो सीखना ही है, सब चीजें सीखें, लेकिन दी बेस्ट वो क्लासेस हैं जिसमें कुरान सीखा और सिखाया जा रहा है। सो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और आप उसका हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया, राइट। तो पहले तालिब इल्म का जिक्र है, पहला वैल्यू वैल्यू उसको किया जा रहा है। अल्लाह की किताब का इल्म खत्म नहीं हो सकता, इसलिए हर शख्स को सीखते रहना चाहिए। यानी कोई शख्स ये कहे जी मैंने सीख लिया अब मैं फारिग हूं, मौत आने तक इस सीखने के अमल को जारी रखना होता है। क्योंकि आप यकीन कीजिए, आप दोबारा से वही चीजें स्टडी करते हैं तो आपके जहन में नई चीजें खुल रही होती हैं। अल्लाह का कलाम है, क्योंकि आप ये कह नहीं सकते कि मैंने स्पेशलाइजेशन हासिल कर ली है आप और मुझे जरूरत नहीं है। अल्लाह का कलाम है, उम्रें चाहिए इसको समझने के लिए। तो अपनी जिंदगी को मख्तस करना चाहिए कि बाकी जो है वो हम हमारा एक प्रॉपर वक्त होना चाहिए जो हम रब के लिए, रब के दीन के लिए कर रहे हैं, वो जारी रहना चाहिए, हमेशा रुकना नहीं चाहिए कि एक साल पढ़ लूंगी फिर छोड़ दूंगी। सिस्टर मेमूना, आप कुछ कहना चाह रही हैं? इज दिस अर्जेंट? जी मैम, मैम मुझे पूछना था, ये जो जिक्र का बयान आया है, जिक्र का मतलब सिर्फ कुरान पढ़ना और सिखाना है कि इसका मतलब कुछ और भी है? सिस्टर, इसका मतलब याद करना भी होता है, इसका मतलब समझना भी होता है, नसीहत हासिल करना भी होता है। सिखाना उसके मतलब में नहीं आता, अगर उसके लिटरल मीनिंग्स में जाएं तो। सिखाना जिक्र में तो नहीं आता ना। नहीं नहीं, इसका गौर व फिक्र और नसीहत करना। हाँ, याद करना भी इसके मानी में आता है, यानी याद करने में हिफ्स भी हो जी जाता है, बिल्कुल, बात करना भी। के लिए भी आसान है। समझना भी और नसीहत लेना भी। ठीक है, यानी जो बात हम पिछले वेनसडे को कर रहे थे कि तदब्बुर और तजक्कुर, गौर करें नसीहत लें, वो भी उसी में आ गया। उसके लिए आसान है, अल्लाह फरमा रहे हैं। तो एक और इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, एक सेकंड में जरा दो नाम सोच लें कि हमने कोर्स मुकम्मल कर रहे हैं। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता रमजान में भी हम रिवाइज कर लेंगे और इतना सीख लेंगे कि हम भी ये कोर्स किसी को पढ़ा सकें। तो अगर आपके जेहन में कोई ऐसा आ रहा है तो कौन हो सकता है, चैट बॉक्स में लिख दें। कम से कम एक से दो नाम आपकी फैमिली में से हो सकते हैं, फ्रेंड्स में से, कि इनको तो मैं सिखाऊंगी, है ना। अपने बच्चों के नाम हो सकते हैं, स्पाउस का नाम हो सकता है, पेरेंट्स का हो सकता है, फ्रेंड्स का हो सकता है। आप लोग जरूर चैट बॉक्स में लिखें और अपने जहन में, एटलीस्ट मकसद ये है कि आप अपने जहन में ले आएं कि आपको भी इंशाल्लाह इसको जारी रखना है, आप भी इसका हिस्सा बने। ठीक है। और सिर्फ नाजरा कुरान ही नहीं बल्कि फहम जो है ना, कुरान को समझना, उसको सीखें, उस पर गौर करें ताकि बात समझ आए अल्लाह ने क्या फरमाया है। नाजरा कुरान तो सीढ़ी है ना, उसको पढ़ना आएगा तो फिर हम उन लफ्जों को सीखेंगे। ठीक है। तो सीढ़ी पर हम इसीलिए कदम रख रहे हैं ताकि हम मंजिल पे पहुंच सकें। तो समझना बहुत जरूरी है। नियत और पूरी कोशिश कीजिए कि इस सिलसिले को नहीं छोड़ेंगे कभी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, क्योंकि नबी ने फरमाया है तुम्हें से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तीसरी बात हमारी थी अमल के साथ नीयत। एक और जगह हमारे प्यारे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन नमल अमालु बिन्नियात, अमाल तो बस नियतों पर हैं। इन नमा का मतलब होता है बस, इसका मतलब होता है सिर्फ, इसका मतलब होता है ओनली। ठीक है। तो राइट, तो अमाल जो हैं, बेसिकली लफ्ज है अमल। अमल कोई भी काम, कोई भी एक्शन जो हम करते हैं, और अमल की जमा है अरबी में आमाल। अलिफ लाम इसको खास कर रहा है, इस इसम को। ठीक है। बिन नियात, दो टुकड़े होंगे, बी और अन्नियात, तो अलिफ लाम भी साथ आ रहा है। बी का मतलब बी हमने हर्फ के तौर पे पढ़ा है, साथ को, पर मुख्तलिफ मानों में आ सकता है। अन्नियात, नियात असल लफ्ज है, तो नियात मतलब नियतें, इसका वाहिद है निय्या। उर्दू में हम नियत लंबी ता के साथ लिखते हैं ना उर्दू में, अरबी में जो है वो ये गोल ता के साथ नियत लिखी जाती है। और गोल ता को हटा के अलिफ ता लगा दें, जैसे मोअन्नस की जमा हमने सीखी थी मुस्लिमातुन से मुस्लिमातुन, इसी तरह नियतुन से नियातुन बनता है। नियतें, अंदर सोच क्या रही हैं इसके मुताबिक अजर मिलेगा आपके अमल का। ठीक है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि अमल
فرق نہیں پڑتا. آپ کچھ ایک یہ لوگ نا یہ بھی ایکسکیوز دیتے ہیں, میری نیت صحیح تھی, کام الٹا چاہے کر رہے ہو نا, ہم سے پوچھو تو کہو میری نیت تو ٹھیک تھی نا. ایسا نہیں ہوتا. یہ تو قرآن میں کتنی دفعہ کہا ہے عمل صالح ہونا چاہیے, یعنی آپ کا عمل بھی درست ہو اور اس کے پیچھے نیت بھی درست ہو. دونوں ضروری چیزیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ عمل جیسا بھی ہو, نیت اچھی کر کے آپ کہیں آپ کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یا پھر آپ نے عمل تو اچھا کیا, نیت آپ کی کچھ اور تھی. دونوں چیزیں صحیح چاہیے رب کو. ٹھیک ہے, تو عمل جو ہے وہ درست ہونا چاہیے, لیکن وہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کی نیت کیا تھی. ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتاتی ہوں جو پڑھ کے ہر دفعہ دل دہل جاتا ہے, وہ یہ کہ قیامت کے دن غور سے سن لیں, پہلا فیصلہ 3 لوگوں کا ہوگا. ایک وہ شہید, دوسرا صدقہ خیرات کرنے والا, تیسرا قرآن کا قاری اور ٹیچر جو دکھاوے کے لیے پڑھاتا تھا. ان کو پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ذرا غور کیجئے, یہ 3 کام کتنے بڑے کام ہیں. یعنی وہ جو جان تک دے دیتا ہے, لیکن اس کی جو انٹینشنز تھیں وہ نام کمانا تھا. ٹھیک ہے, صدقہ خیرات کرنے والا, اس کی انٹینشنز یہ تھی کہ لوگ اس کو بڑا سخی کہیں گے. قرآن کا قاری اور ٹیچر, لوگ اس کو بڑا دیندار کہیں گے, کتنا نیک ہے دیکھو. اس لیے اس نے یہ کام کیے تو اس کو ان کو پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا. اللہ کو قابل قبول نہیں ہے ایسا عمل جو لوگوں کے لیے کیا جائے. تو قیامت کے دن ان کو کہا جائے گا, انسان کہے گا میں نے یہ نیک کام کیے تھے. اللہ تعالیٰ کہیں گے تم نے کس کے لیے کیے تھے, میں تو جانتا ہوں تمہارے دل میں اور دماغ میں کیا تھا. تم نے میرے لیے تو سوچا ہی نہیں, تم نے اس لیے تو کیے نہیں کہ میں یہ رب کے لیے کر رہا ہوں. تو جن کے لیے کیے ہیں ان کا اجر لوگوں سے لے لو جا کر, وہ تمہیں مل گیا. لوگوں نے تمہیں بہت واہ واہ کی دنیا میں, لوگوں نے کہا بڑا کوئی اچھا بڑا نیک آدمی تھا, تو تمہیں مل گیا جو تمہیں چاہیے تھا. تمہیں تو یہ چاہیے نہیں تھا, تم نے رب کا تو سوچا ہی نہیں. اس کا مطلب ہے عمل کرتے ہوئے ذہن میں رکھیں گے آپ رب کے لیے کر رہے ہیں. اگر آپ وہ واقعی رب کے لیے کر رہے ہیں تو ربی کا سوچیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کریں. دس پوائنٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. کتنے بڑے اعمال کے بارے میں ایسی بات ہو رہی ہے, آپ سوچیں. ٹھیک ہے, تو عبادت جو ہے وہ برباد ایسے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا جس میں اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ نیت شامل ہو. یہ مثال ایسے ہی لے لیں, جیسے دودھ جو ہے وہ کتنے ایک پاک مشروب مانا جاتا ہے, اس کے بارے میں ذکر ہے جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی, ہے نا. لیکن دھیان رکھتے ہیں کہ گر بھی نہ جائے یا ڈول. تو دودھ کے گلاس میں اگر ایک قطرہ کہیں سے گندگی کا گر جائے تو ہم پورے گلاس سے ہمیں گھن آنے لگ جاتی ہے کہ ہم اب اس کو نہ ہی پئیں. تو ایسے ہی سمجھ لیں, آپ نے جتنی مرضی اچھے کام کیا ہے اس کے اندر آپ نے نیت یہ شامل کر دی کہ میں لوگوں کے لیے کر رہا ہوں, میرے ہمسائے میرے فیملی والے مجھے بڑا اچھا سمجھیں گے, بڑا نیک. یہ تو سوچا ہی نہیں کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, تو وہ ضائع ہو گیا. کتنی بڑی بات ہے جو ہم سوچتے بھی نہیں ہیں. ہمیں ہر لمحے پہ سوچنا چاہیے اور گواہ بنانا چاہیے اللہ کو, اور اپنی ذہن کو واش کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ شیطان ہے نا, توجہ ادھر ادھر کرواتا ہے وہ. انشاءاللہ ہم صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن سیکھیں گے, اور تاکہ سیکھ کے دوسروں کو ہم سکھا سکیں. دنیا کے شاید 90% مسلمان قرآن کو نہیں سمجھتے, ذرا دھیان سے سن لیں. 90% مسلمان دنیا کے قرآن کو نہیں سمجھتے, اس لیے ہم خود قرآن کو سمجھیں گے, تاکہ اتنی جو ہم امت مسلمہ کو ضرورت ہے اس کے لیے جو ایفرٹس لوگ کر رہے ہیں اس کا حصہ ہم بن جائیں. تو آپ مجھے بتائیں کتنی بڑی بات ہے, اور سبقت لے جائیں اس میں عکاشہ بن محسن کی طرح. یہ نہ سوچے دوسرے نہیں کر رہے. جس چیز کی ڈیمانڈ جتنی زیادہ ہو اس کا ریوارڈ بھی تو اتنا ہی زیادہ ہوگا. تو آپ اپنے آپ کو مختص کریں کہ میں سیکھوں گا اور میں اپنی ابیلٹیز استعمال کرتے ہوئے بیسٹ وے میں, ایزی وے میں دوسروں کو سکھاؤں گی. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے بہت مسلمانوں کو ضرورت ہے. قرآن ناظرہ میں پڑھ رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے وہ. انما الاعمال بالنیات, اعمال تو بس نیتوں پر ہیں. تو یہ 3 لفظ ذرا دیکھ لیں تاکہ مکس نہ ہو. ان کا مطلب ہوتا ہے اگر, انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک, اور انما کا مطلب ہوتا ہے صرف. ٹھیک ہے, ان کی ریفرنس جملہ انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. انما سے انما الاعمال بالنیات, اعمال تو صرف نیتوں پر ڈپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے جی پوائنٹ. تو آج کا ہمارا 18A پارٹ مکمل ہوا ہے. اس کے حوالے سے کوئی پوائنٹ اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا یا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو آپ مائک آن کر سکتے ہیں. اینی پوائنٹ, کوئی پوائنٹ آپ کے ذہن میں ہے تو. از ایوری تھنگ کلیئر, سب کچھ سمجھ آیا ہے آپ کو؟ الحمدللہ. جی جی سب کچھ سمجھ آئے گا.
बाजी अल्हम्दुलिल्लाह। ये इन्ना जो है ये अन्ना भी हो सकता है। सिस्टर, अन्ना एक अलग लफ्ज है। अच्छा। अन्ना का मतलब आमतौर पर के होता है, आमतौर पर, एक्सेप्शंस अलग हैं। ठीक। इन्ना का मतलब बेशक है, अन्ना के। जैसे अन होता है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु हाँ जी अन्ना हाँ। मुहम्मद रसूलुल्लाह, अजान में आता है ना। दोनों का हाँ मतलब के, जी। मैं गवाही देता हूँ के। ठीक है। ठीक। और इन्ना जो है वो बेशक होता है, राइट। तो आइए जी, लेसन 19 की तरफ आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे मैंने आपको तीन बातें लेसन 18 में बताई जो कि कुरान समझने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, जो आपने मेहनत की है उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इसी तरह तीन और बातें मैं बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और वो तीन बातें कौन सी हैं? वो सीखने के तरीके के बारे में है। यानी सीखने की बात अभी हो रही थी ना, कि समझें कुरान को एंड ऑल दैट। तो तीन तरह से, यानी दुआ, वसाइल और जज्बा, ये तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम सीखना चाहते हैं तो, कुछ भी दुनिया में कोई चीज भी सीखना चाहते हैं तो तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे हम इस इन तीन चीजों को कनेक्ट करेंगे कुरान सीखने से। क्योंकि पहला इल्म तो ग्रेजुएट तभी होते हैं हम दीन में, तो तब तक कुरान समझ आए हमें। उसके आगे कोई और बात है, फिर दूसरी ब्रांच चीजों को समझें दुनिया में। लोगों की लिखी हुई किताबों को समझे, कोई मसला नहीं है, उसमें से निकालें सही इल्म जो है। लेकिन असल हक किताब को समझने के बगैर हम दूसरी चीजें समझे जा रहे हैं, तो फिर भटकेंगे तो सही ना हम, राइट। तो इसलिए सबसे पहले दुआ, वसाइल और जज्बा, तीन चीजें जो हमें बताई गई हैं खास, इनको हम कुरान सीखने से कनेक्ट करते हैं कि हमें ये कितना मदद करेंगी। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और खुशी की बात यह है कि हम इस कोर्स के सारे लफ्ज मुकम्मल हो जाएंगे हमारे लेसन 19 में। सारे लफ्ज इस कोर्स में हैं 232 बेसिक। और वो कुरान में 41,111 टाइम्स कुरान में रिपीट होकर आए हैं। तो आज हमारा ये नंबर, यही आपको बताया गया था कि हम 41,111 इस कोर्स में सीखेंगे। ये अभी मुकम्मल हो जाएगा। और इसके अलावा जो लफ्ज होंगे वो हम कोर्स 2, 3, 4, 5, 6, 7 में सीखेंगे। ठीक है। तो खैर, पिछले सबक में हमने बात की थी, कुरान समझना आसान है, ये अल्लाह का करम है। और अल्लाह ने इसको बेहतरीन भी कर दिया है कि आसान है, उसके बावजूद अगर तुम इसको सीखने सिखाने का काम करोगे, दी बेस्ट की कैटेगरी में तुम्हें मानूंगा मैं, रिवॉर्ड उसके मुताबिक दूंगा। सुभान अल्लाह, ये भी अल्लाह का करम है। फिर अल्लाह ने कहा लेकिन नीयत सही होनी चाहिए। अमल के साथ नीयत ये रखो कि तुम मेरे लिए कर रहे हो, मैं रब हूं तुम्हारा। किसी और के लिए कर रहे हो तो मतलब तुम मेरे मुकाबले में ला रहे हो किसी को। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तीन बातें ये थी लेसन 18 की। और अब तीन बातें सीखने की, दुआ, वसाइल, जज्बा, ये तीनों अपने अंदर ले आए। कैसे? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरत ताहा में एक आयत मुबारक है जिसमें आप देखते हैं रब्बी ज़िदनी इल्मा, दुआ आती है जो अल्लाह अपने नबी को सिखा रहे हैं, ए मेरे रब, ज्यादा कर मुझे इल्म में। ये दुआ हम सभी को आती है, मेरा ख्याल है हमारे स्कूल्स में दीवारों पे लिखी होती है ना। सुभान अल्लाह। तो इसको देख लेते हैं जरा, मानी भी हमें पहले से पता है। रब्बी, ए मेरे रब, तो यहाँ मेरे का मानी कहाँ है, बताएगा कोई? बा के नीचे जेर है बा इसलिए। के नीचे फेर। बा वेरी में गुड। तशदीद है ना, तो बा दो ये दफा यूज तस्दीर है, होगी। दो नहीं नहीं, दफा रब्बी पढ़ेंगे में जी। जो जेर आ रही है ना, वो या अरबी लोग कहते हैं, आपने हमें बताया था किसी लेसन में कि वो या को हजफ कर देते हैं, लेकिन जेर हमें बता रही है कि ये मेरा है। बिल्कुल रब्बी सही है, या। बिल्कुल सही है। यानी जैसे हमने टेबल पढ़ा था, रब्बू हु उसका रब, रब्बू हुम उन सबका रब, रब्बू का तुम्हारा रब। अ, ठीक है। रब्बी मेरा रब, तो ये जो रब्बी था उसमें इसी रब के आगे या भी था। ठीक है। तो लेकिन हम वो या यहाँ पर अरबी जो लोग हैं ना वो हमेशा नहीं लिखते, वो कहते हैं जरूरत नहीं है। कुछ चीजें हर जुबान वालों को बहुत ही अंडरस्टूड होती हैं कि ये तो है ही है। ऐसे ही हमारे उर्दू में भी होता है, जो नए उर्दू सीखने वाले हैं वो सोचते हैं कि क्या है। तो वो या जो रब्बी मेरा रब वाली या है ना आखिर में, वो इसमें ऑटोमेटिकली मौजूद है लेकिन छुपी हुई है। कई कई जगह पे वो लिखना जरूरी नहीं समझते, वो कहते हैं जेर को देख के समझ जाएं कि या मौजूद है। ठीक है। तो इसलिए इसका मतलब है ए मेरे रब, हम रब को पुकार रहे हैं। जिद नी, इसके दो टुकड़े करके आप इसको समझेंगे। जिद, एक तो ज्वाद वाली जिद होती है ना, जो बच्चे जिद करते हैं माँ बाप से, ये जा से अरबी में जिद है ज्यादा से, ज्यादा कर। जैसे हमने अमर पढ़ा था ना, ये वाले इशारे किए थे, तू कर तुम सब करो, तू मदद कर तुम सब मदद करो। तो जिद का मतलब है तू ज्यादा कर। ठीक है। ये हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। नी
मुझे। ये भी जो यी है मेरे के मानों में है, लेकिन बहुत सी जगहों पर यी को सहारा देने के लिए एक पिल्लो चाहिए होता है, तकिया उसको, तो उसके लिए नून आ जाता है। ये भी एक तरीका है, हम बहुत जगहों पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिद यी नहीं पढ़ा रहे, वो कह रहे हैं सही पढ़ने के लिए नून भी लगा दें, तो जिद नी, ज्यादा कर मुझे। ठीक है, ओके जी। इल्मन किस चीज में? इल्म में, यानी जो मेरा इल्म है ना उसको ज्यादा कर, तो ये है दुआ। और इल्म कौन सा चाहिए हमें? क्या गलत इल्म चाहिए? अगर आपने किसी चीज का इल्म लेना हो तो आप यही कहेंगे सही सही बात बताओ। किसी नेबर वाले की बात भी पूछनी हो ना, साथ वाली आंटी के घर में आजकल क्या चल रहा है, तो भी हर कोई कहता है सही वाली बात पता चले। खैर, ये बात पता चलाने की टो में नहीं रहना चाहिए। एक समझदार मोमिन मुसलमान खवातीन को वैसे इस चीज़ में ज़्यादा कसूरवार कहा जाता है कि उनमें ये आदत ज़्यादा होती है। और मुझे और आपको सीखना चाहिए कि ये एक सुलझे हुए एजुकेटेड इंसान का काम नहीं है कि वो दूसरों की पर्सनल चीज़ों पे नज़र रखे, बल्कि गुनाह है। प्राइवेसी जो है उसको तोड़ना चाहिए ही नहीं। खैर, ये बहस कहीं और निकल जाएगी, हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ ये बात कर रही थी कि ए मेरे रब ज्यादा कर मुझे इल्म में। तो इल्म की दुआ यहाँ पर हम रब से मांग रहे हैं, सही इल्म हमें चाहिए। तो सही इल्म जिसमें कोई शक नहीं, वो तो कुरान है। और फिर उसको सिखाने के लिए ऑथेंटिक अहादीस नबी की तालीमात मौजूद है। बाकी दुनिया में जितना भी इल्म है जो इंसानों ने लिखा है, उसमें से कोई भी 100% सही नहीं है। साइंस में रूल्स आते हैं ना, हमने खुद पढ़े हैं, मैंने और आपने, कि ये लॉ है, ये पढ़े हैं। कुछ टाइम के बाद नए साइंटिस्ट आते हैं, वो कहते हैं वो गलत था, अब ये पढ़ेंगे, तो हम कहते हैं हाँ वो गलत है। कुरान के बारे में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो इंसानों ने लिखा है। तो सही इल्म कुरान का है, और हम कुरान समझ के पढ़ने के बगैर बजाय बाकी सब पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं बहुत है, हम बड़े एजुकेटेड हैं। तो खैर, इसलिए हम अपनी पहली दुआ मांगेंगे, हमें सही वाले इल्म में ज्यादा कर, सही इल्म जो रब बताने वाला है कुरान में। ठीक है, तो अल्लाह ताला अपने नबी को सिखा रहे हैं कि आप ये दुआ मांगे, उनके जरिए से हमें सिखा रहे हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताएं मांगना कैसे होता है। एक तो ना ये कॉन्सेप्ट हमारा आ गया दुआ करना। दुआ जो है ना वो फिर हम उसको करना ही समझते हैं। टीवी में कोई ड्रामा सीरियल चल रहा है, हम उसको देख के मेरा कोई मसला काम हल नहीं हो रहा, तो मुझे किसी ने बता दिया जी 315 दफा वट एवर ये तस्बीह आपने करनी है, आपका मसला हल हो जाएगा। अब मैं ड्रामा सीरियल देख रही हूँ, अच्छा उसमें ये हो रहा है, और मैं वो तस्बीह किए जा रही हूँ, और ध्यान मेरा ड्रामे की तरफ है। आप मुझे बताएं इसको दुआ कहते हैं? यानी ये शिर्क की किस्म हो गई, अगर आप जरा डीप जाके समझें कि आपको लगता है वो लफ्ज आपको देंगे, नहीं, देने वाला रब है। दुआ का मतलब होता है आप मांगो। कैसे मांगा जाता है? कभी देखा मैं किसी फकीर को वो कैसे कैसे हीले बहाने करता है, मेरे पास कुछ नहीं है मुझे दे दो। कभी कभी हम ना चाहते हुए भी हम कहते हैं, ये बिजनेस कर रहे हैं फकीर लोग भी, लेकिन हम कहते हैं नहीं नहीं दे दे। कभी कभी दिल ही नहीं चाहता उनको दिए बगैर आगे बढ़ने का, है ना। तो फिर हम सोचते हैं नबी का भी तरीका था, तो चलो वो डिजर्विंग है या नहीं, हमें दे ही देना चाहिए। तो मांगना कैसे होता है? मांगने को मांगने की तरह मांगे, ये होती है दुआ। किसी को पता चले उसका कोई बहुत मेजर सर्जरी होनी है, हार्ट ओपन हार्ट सर्जरी होनी है, किसी को हम में से पता चले, अल्लाह ताला महफूज रखे, डॉक्टर कहे कि कल होनी है और आपकी जान को बड़ा खतरा है, मतलब बड़ी सीरियस कंडीशन है, बस दुआ करें। उस रात उस ऑपरेशन वाले को की जो गुजरेगी, और वो जो दुआ मांगेगा वो कैसी होगी जरा इमेजिन करें। या वो चीज जो आपके पास वाकई नहीं है, एहसास है आपको की चीज नहीं है, आपको चाहिए ही चाहिए, आप उसके लिए कैसे मांगते हैं? तो दुआ यही होती है, दुआ को मांगा जाता है, किया नहीं जाता। ठीक है, जो लफ्ज हम पढ़ते हैं ना अल्लाह समद, कितनी कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह बेनियाज है। यानी हर कोई अल्लाह का मोहताज है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। मुश्किल वक्त में कहते हैं ये आप इसका जिक्र करें, यानी आप अल्लाह के सामने इजहार करें कि अल्लाह तू सबको देने वाला है, तू इतना ताकतवर है, तुझे किसी की जरूरत नहीं, इतना तो ताकतवर है, तो मेरा ये मसला हल कर दे। ये रीजन है। ये नहीं कि आप देख कहीं और रहे हैं, आपको अल्लाह समद का मतलब पता नहीं है। वो तो अल्लाह का करम है कि वो आपको आपकी अदा देखकर ही आपको दे देता है, लेकिन वो कोई इंसान इस काबिल होता नहीं है कि उसको मिले, उसको वो रब से कनेक्ट ही नहीं कर रहा। वो ये सोच ही नहीं रहा मुझे रब दे रहा है, वो कहता है मुझे जिन बाबा जी ने बताया था उनकी वजह से मिल रहा है। ये बड़ी डीप बातें हैं। तो इल्म कितनी जरूरी, कभी इल्म के लिए हमने ऐसे रो के दुआ मांगी है? मांगी ही नहीं। इल्म के तो हर कोई जान छुड़ा रहा होता है, पढ़ना ना पड़ जाए, फिर पढ़ लेंगे तो अमल करना पड़ जाएगा, तो नहीं पढ़ेंगे तो भी, बल्कि उससे भी डबल होगा कि तुमने कोशिश ही नहीं की थी अमल के लिए सीखने की, उससे ज्यादा सब गुनाह होगा। तो ये बड़े गलत कॉन्सेप्ट्स हमारे अंदर राइज हैं। खैर, इसी तरह जैसे हम अपनी अजीज चीजें मांगते हैं, हमें इल्म के लिए भी सही मानों में दुआ दिल से मांगनी चाहिए, तड़प कर, शिद्दत से, दिल से, बार बार, जैसे अपनी किसी जिस चीज की हमें जरूरत हो ना, तलब हो, उसके लिए हम मांगते हैं।
ठीक है। तो अल्लाह ताला हमें जहालत की बीमारी से निजात दे। और जहालत, जाहिल किसको कहते हैं? जिसके पास इल्म कम हो। तो मैं चाहूंगी कि कोई मुझे कहे जाहिल हो। आप चाहेंगे? आपको को बहुत माइंड करेंगे, मैं भी बहुत माइंड करूंगी। तो फिर हम खुद ही अपने आप को जाहिल रखते हैं, यानी कुरान को हम समझ ही नहीं रहे, सही इल्म जो अल्लाह ने दिया है, फिर हम कह रहे हैं हम तो जाहिल नहीं है। सो दिस इज द पॉइंट, है ना? तो खैर, अल्लाह ताला हमें एक सही इल्म अता फरमाए, उस पे अमल की भी तौफीक अता फरमाए। दुआ के साथ हमें चाहिए कि हम कुरान को समझने की कोशिश में वक्त लगाएं। यानी अल्लाह से दुआ मांग ली, इसके बाद हाथ बांध के बैठना नहीं है। अल्लाह ने इंसान को, कुरान की आयत मुबारक ही कह रही है कि मैं इंसान को वही के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। रब से दुआ मांगेंगे कि रब, ए अल्लाह मैं ये काम शुरू करने जा रहा हूँ, तो मेरी मदद फरमा, मुझे अता फरमा इसकी मंजिल। और साथ फिर आप अपनी एफर्ट करेंगे। ये भी एक कॉन्सेप्ट है ना, बस अल्लाह दे देगा खुद ही, तो एफर्ट करनी है, ठीक है? वो अल्लाह रब को चाहिए हमारी तरफ से। बाज नादान लोग ये कहते हैं, जो बात मैं अभी करी थी, कि इल्म हासिल करोगे तो अमल करना पड़ेगा, तो इसलिए इल्म हासिल ही ना करो, पहले ही जो पता है ना उस पर अमल नहीं हो रहा। ये ज्यादा जहालत की बात है, ये ज्यादा जहालत की बात है। आप ये वाला ये ड्रामा हम एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, अल्लाह के साथ नहीं कर सकते। कयामत के दिन अल्लाह से ये कहेंगे, ओ अल्लाह ताला, मैं तो वो कुरान मैंने समझा नहीं, इसलिए मैंने अमल नहीं किया, आप मुझे माफ कर दें। तो अल्लाह ताला कहेंगे, तुम्हें नहीं पता था कुरान मैंने भेजा है, तो उसको समझो। नहीं समझा तो अब तो तुम्हारी डबल सजा है इस पर। तो बात ये है, इसको पॉजिटिव लें। जितना इल्म ज्यादा लेंगे ना, यकीन करें, दिल और दिमाग पर, आपके वजूद पर, आपकी रूह पर इतना असर होता है, आहिस्ता आहिस्ता अमल करना आसान हो जाता है। इल्म जितना ज्यादा होगा, चले इल्म यहाँ है तो अमल का मयार भी बढ़ता ही जाएगा ना कुछ तो। लेकिन इल्म ही यहाँ है तो अमल कहाँ होगा? हम तो, अमल तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए फिर। तो इस चीज को समझें, ठीक है? अल्लाह ताला हमें वाकई सही इल्म अता फरमाए, ताकि देखिए, कहते हैं वो कहानियां हम पढ़ा करते थे बचपन में, तिजोरी है, खजाना, उसको लेने के लिए 11 भाई थे, तो उन्होंने उन्होंने फला बाबा जी ने उसको उनको रास्ता बताया, फला तुम इतने समंदर, 7 समंदर पार करके जाओगे, फिर उस गार में तुमने एंटर होना है, तुम्हें वहां वो सोने का संदूक मिलेगा। मुझे याद है हम बहुत कहानियां रीडिंग बहुत किया करते थे। तो जरा जरा एक मिनट मुझे दीजिए, मैं आपसे आगे कंटिन्यू। ओके, आई एम सो सॉरी, सो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू। तो हम क्या बात कर रहे थे जी? इल्म के बारे में। अल्लाह ताला जो है वो हमें समझ अता फरमाए, इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, मुझे और आपको दोनों को, हम सबको इंशाल्लाह। और खैर आगे बढ़ते हैं। अ, अब पहले बात हो गई, अल्लाह ताला हमें खुद कुरान में सिखा रहे हैं कि तुम कुछ भी तुमने करना है ना, मेरी मदद मांग लो, क्योंकि रब तो मैं हूं ना, देना तो मैंने है। अल्लाह ताला खुद इतने प्यार से हमें समझा रहे हैं, अपने नबी को समझा रहे हैं, ये दुआ अल्लाह ने अपने नबी को सिखाई कि आप मांगें। हालांकि सारा इल्म तो उन्हीं के जरिए अल्लाह ताला हमें दे रहे हैं। सारी दुनिया के असल टीचर जो अल्लाह ताला हमारे नबी के टीचर हैं, कोई और नहीं। और फिर हमारे नबी पूरी कायनात के, दुनिया के टीचर हैं, फिर भी उनको कह रहे हैं कि इल्म के लिए दुआ मांगे। कितनी प्यारी बात है। तो हमें तो ऑनर समझना चाहिए, वो दुआ मांगनी चाहिए जो हमारे नबी को मिली है ना? तो एक तो हो गई दुआ, दूसरा हो गया वसाइल का इस्तेमाल। वसाइल क्या होते हैं? रिसोर्सेज जो अल्लाह ने दुनिया में कायनात बनाई है, उसमें कितनी चीजें दी हैं, इसलिए दिया उनको इस्तेमाल करो। उनसे नई नई चीजें फिर हम इजाद करते हैं, बनाते हैं, तो भी अल्लाह का करम है ना? तो सूरतुल अलक की आयत मुबारक है, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने सिखाया कलम से। ठीक है? ये क्या है जी? ये कौन सी सूरत है? इसके बारे में क्या खास बात हम सब जानते हैं? ये वही पहली वही थी जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इस सूरत अल्लाह की कितनी आयतें नाजिल हुई थी सबसे पहले? अ, मेरे ख्याल है इकरा 5 हुई बिस्मि थी। रब्बिकल 5 लज़ी। सही है, ऐसा ही है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। तो ये देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इल्म इतना फैल जाता है कि वो आमतौर पे हमारे सब लोगों को पता होती है। कितनी खुशी होती है। काश वो दिन हम अपनी जिंदगियों में देख लें, काश मेरी और आपकी जिंदगी में, कि इसी तरह कुरान की हर बात हर किसी को पता हो।
कितनी कितनी खूबसूरत बात है। हम जब इकट्ठे बैठा करें, दोस्तों से मिले, रिश्तेदारों से, तो हम हर बात डिस्कस, अच्छा वहाँ ये लिखा था, अल्लाह ने ये कहा था ना, उस पर डिस्कस करें, समझें कि मुझे तो ये बात समझ आ रही है, दूसरा कहे मुझे ये समझ आ रही है, तीसरा कहे फला अल्लाह के जो एक्सपर्ट है, आलिम है, उन्होंने ये बताई थी, इस पे गौर करें, इसको समझें। कितना अच्छा लगेगा, जैसे अभी ये बात फॉरेन सिस्टर्स ने बता दी, माशाल्लाह। तो अब यहाँ बात कलम की हो रही है, खैर इसको हम आगे समझते हैं। अल्लज़ी, जिसने, कुरान में अल्लज़ी की जमा है अल्लज़ीना, यानी वो एक शख्स जो कोई काम कर रहा है उसके लिए अल्लज़ी आता है, ज्यादा शख्स कोई काम कर रहे हैं वो लोग जो, उसके लिए अल्लज़ीना आता है। ठीक है, तो वो जो या जिसने, अल्लमा उसने सिखाया, अल्लमा अभी मैंने आपको खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु बताया था। अल्लामा, ताल्लमा सीखा, और अल्लामा सिखाया, ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, सॉरी ये देखें, ये आपको मैं भी सिखा चुकी हूँ। बिल कलम, कलम के साथ, बी और अलग कलम। तो एक तो ये वाजे बात हो गई, कुरान किसी चीज का जिक्र कर रहा है तो वैल्यू तो है ना, मतलब कलम इस्तेमाल, कलम का इस्तेमाल यानी किसी चीज को लिख कर सीखना, उसकी बात ही कुछ और है। आई एम सो सॉरी, मुझे लगता है लैपटॉप की चार्जिंग कम हो रही है, मुझे सिर्फ फ्यू सेकेंड्स दें, मैं चार्जर लगाना भूल गई थी। अभी मैं लगा के आपको वापस ज्वाइन करती हूँ, ठीक है। जस्ट गोइंग टू ज्वाइन यू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल सही से? जी बिल्कुल आ रही है। जी आ रही है आपकी आवाज। आपकी आवाज आ रही है पर थैंक यू। तस्वीर नहीं आ रही। वीडियो भी आ गई अब? हाँ अब आ जी गई है। थैंक यू सिस्टर्स, थैंक यू, आप लोग बहुत एक्टिव है माशाल्लाह, फौरन से रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो एनर्जी बढ़ जाती है कि लोग हैं जो एक्चुअली सुन भी रहे हैं, वरना ऑनलाइन में पता भी नहीं चलता ना कौन तो वजह से सुन रहा है। मुझे तो नहीं चलेगा, अल्लाह को तो पता चल रहा है, अल्लाह आपसे बहुत राजी हो माशाल्लाह। तो हम बात कर रहे थे कलम की, ये कलम मेरे पास काफी सारे रखे हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल हम, मैं और आप कितना करते हैं, असल बात तो ये है, चीजें तो अल्लाह ने हमें बहुत दे दी हैं, वो चीजें अता कर दी हैं जो उस जमाने में, नबी के जमाने में सहाबा के पास इतनी वैरायटी नहीं थी, लेकिन जो था वो उसको इस्तेमाल करते थे, है ना। तो अभी बात हम कलम की करते हैं, इसका मतलब है अगर कलम का जिक्र हुआ है तो लिख कर सीखना वैल्यू रखता है, ये साबित हो गया। तो आप में से बहुत सारे लोग जो वर्क बुक कर रहे हैं मैं उनको अप्रिशिएट करूंगी, जो आप लिख कर सीखते हैं, क्योंकि देखें आपकी तवज्जो उसमें जाती है ना, लिख कर सीखने में। कैसे, कैसे जाती है तवज्जो, यानी आप जब आ, कुछ पढ़ रहे हैं ना तो आपका कुछ दिमाग कुछ और सुन रहा है, आप कुछ और थोड़ा बहुत सोच भी रहे हैं, लेकिन जब लिखते हैं ना आपको बहुत फोकस, अपनी सेंसेस को इकट्ठा करना पड़ता है कि ये लफ्ज है क्या जो मुझे लिखना है, लिखना कौन सी लाइन पर है, कौन सी जगह पर सब सिमट कर लिखना चाहिए, कलम है तो काफ बनाएंगे, उस पर दो नुक्ते भी होते हैं, फिर लाम फिर मीम, राइटिंग कैसी जानी चाहिए, पेन को रखना है, हाथ को कैसे हिलाना है, तो ये लफ्ज बनेगा। इसका मतलब है लिखते हुए ऑटोमेटिकली दिमाग इकट्ठा हुआ तो वो चीज उस तरह से डाउनलोड हो जाती है दिमाग में और वो सेव रहती है हमारी मेमोरी में। ठीक है, तो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो खैर, तो ये हमें पता चल गया, तो इस पे इनकार नहीं किया जा सकता, लिख के जो सीखेंगे ना, ये हमारे स्कूल यूनिवर्सिटी में भी सब कहते हैं लिख के प्रैक्टिस करो, तो जितना ज्यादा कोई लिख के सीखेगा उसकी वो चीजें याद रहेंगी, ये जहन में रखें। जदीद तहकीक इस बात को प्रूव कर रही है कि आप पूरी तवज्जो क्योंकि इसमें देते हैं तो वाकई लिख के सीखना चाहिए, साइंस भी इस बात को समझ रही है आहिस्ता आहिस्ता, अल्लाह की बताई हुई बातें कई साइंस समझ चुकी है और कई अभी समझ नहीं पाई, आगे और आने वाले वक्तों में समझेगी। ठीक है ना, जिनसे साइंस लड़ाइयाँ कर रही होती है कि ऐसे क्यों है दीन में, वो भी समझ जाएगी, अल्लाह का हुक्म हुआ तो कभी, कि सही बात तो अल्लाह ने ही फरमाई है। सिस्टर कमल इजाज, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी बाजी, मैं आपकी बात, आपने भी पूछा था कौन कौन कर रहा है, तो मैं डे फर्स्ट से ही साथ वर्क बुक कर रही हूँ। और उससे मुझे ये फायदा हुआ है कि जो मैंने मिड्स दिए हैं ना वो बगैर पढ़े ही दिए हैं बस। सब मुझे ओके, आता था। हाँ अरे जी। वाह, माशाल्लाह, काफी ये तो इतनी बड़ी आसानी बात हुई आपने बीच में है। बता दी है, वेरी गुड सिस्टर कमल इजाज। इसका, इसकी जजा साथ साथ आपको, होता रहा ना तो इजी हो गया बहुत। जी बिल्कुल, असल में मकसद यही होता है, हमारे बहुत से स्टूडेंट्स ये करते हैं, खत्म होने वाला कहते हैं मैं टाइम टाइम जल्दी जल्दी कर लें, ठीक है, उस पर भी मैं अप्रिशिएट करूंगी कि वो कम से कम करते हैं, लेकिन असल फायदा ये है, आपको एक हफ्ता क्यों दिया जाता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो रोज क्लासेस हो रही हैं आपकी पूरा हफ्ता, ताकि आप पढ़ भी लें उसको, याद भी कर लें, आप बीच में टाइम निकाल के उसको लिख भी लें,
अगले लेसन से पहले आप रिफ्रेश होंगे सारे कॉन्सेप्ट्स को लेकर। तो असल लर्निंग वो होती है, उसमें बर्डन भी नहीं बनता। सिस्टर कंवल, मैं आपको फिर अप्रिशिएट करती हूँ। सिस्टर शबाना, आप क्या कहेंगी? जी मैं ताज़ा काम तो कर रही हूँ, लेकिन मेरा ये होता है कि अभी मेरे पास मार्कर्स हैं, बुक्स हैं, जो आपने बुक्स भेजी उसको हाईलाइट करती हूँ और एक दफ़ा गौर से सुनती हूँ, लिखती भी हूँ साथ साथ। फिर अभी मैंने वो पूरा नहीं किया अपनी वर्क बुक, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी बगैर पढ़े ही दिए हैं, क्योंकि मैं इतनी माशाल्लाह, मसरूफ वेरी होती गुड। हूँ अल्हम्दुलिल्लाह देखिए जी, कि वो आपका देखिए लेक्चर इतने पूरे औजार गौर से हमारे मैं पास हर चीज मौजूद सुन हैं। के। अच्छा, तो इतने जबरदस्त लोग हमारे पास मौजूद हैं जी, देख लें बाकी सब भी। और हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए हम सबको। उन्होंने स्टडी के बगैर मिड क्विज दे दिया, आप देखें, इसका मतलब है वो साथ साथ इतने रेगुलर रहे हैं क्लास में, या रिकॉर्डिंग के थ्रू या लाइव क्लास में, कि वो जो है वो उनको पता है कि सिंपली हम पढ़ चुके हैं, जरूरत ही नहीं है हमें। तो असल में तरीका यही होना चाहिए, आप सही कह रहे हैं। हम जो आखिरी दिन में इतना पढ़ते हैं ना, आखिरी दिन में सिर्फ गो थ्रू ही करना चाहिए एक इंसान जो साथ साथ पढ़ रहा है। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, अल्लाह आप सबकी एफर्ट्स कबूल फरमाए। तो खैर, मैं यही कहूंगी कि यहाँ पर ऐड करूंगी कि आपको पता है अगले बुध को हमारी फाइनल रिवीजन होगी, और उससे मतलब एक संडे ये है, एक इससे अगला संडे है, तो उस संडे को फाइनल क्विज है। सो आमतौर पर होता यही है कि उससे पहले पहले वर्क बुक की जाती है, क्योंकि उसी फिर आगे बुध को हमें रिजल्ट अनाउंस करना है रमजान से पहले। सो आप लोग जिनका काम ज्यादा रहता है वो इन दिनों में टाइम देकर कर लें, क्योंकि फिर रिजल्ट में नंबर ऐड नहीं हो पाएंगे अदरवाइज। और मैं यही कहूंगी कि बहुत डिटेल में ना जाएं। मैं आपको खुद कह रही हूँ एज अ टीचर ऑफ दिस कोर्स, दिस बैच, कि आप सिर्फ मुख्तसर जवाब लिखें वहां। हम आपसे ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे, आपको अप्रिशिएट, ठीक है, इट्स ओके, आपका अपना अंदाज हो सकता है। आपको सवाल पूछा जा रहा है, अगर एक लफ्ज में जवाब बनता है आप एक लफ्ज लिख दें, इससे आपके नंबर नहीं कटेंगे, मुकम्मल होनी चाहिए बस। ठीक है, तो इस हवाले से कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे इस हफ्ते में आप पूछ भी सकते हैं, डिस्कस करें। खैर, आगे चलते हैं जी। आज का आखिरी पॉइंट, हमने पहली बात क्या की इल्म के बारे में? दुआ। अल्लाह ने सिखाई है, सीखने जा रहे हो तो मुझसे मांगो, मेरी मदद तुम्हें चाहिए, उसके बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात कि वसाइल इस्तेमाल करो। अब ये कलम से मतलब सिर्फ कलम नहीं है, इसका मतलब एक वो जो हम कहते हैं ना कि एक वक्त था जब कहा जाता था ओहो हो कैमरे तो गुनाह है। अब आप देखिए कि वो कैमरे हमारी मसाजिद में भी लगे हुए हैं। एक वक्त था जब कहा जाता था माइक, नबी ने तो इस्तेमाल नहीं किया, अब माइक मसाजिद में भी इस्तेमाल होते हैं, समझ लिया ना उस बात को। तो वो चीज जो कोई अगेंस्ट नहीं जा रही, जो इस्लाम के रूल्स को तोड़ नहीं रही, वो गलत नहीं है। समझ रहे हैं, इंसान अल्लाह का ही बंदा है, उसने अल्लाह की बनाई दी हुई अकल से चीजें इजाद की हैं। वो दीन को टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ता जा रहा है, अल्लाह के ही बंदे हैं, अल्लाह के करम से ही हुआ है। उन चीजों को इस्तेमाल करके अगर आप दीन को ज्यादा अच्छा स्प्रेड कर सकते हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, और बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करके इल्म बढ़ा सकते हैं, तो सब इस्तेमाल करें। इसका मतलब है दुनिया की जो बनाई हुई चीजें हैं उनको इस्तेमाल करना गुनाह नहीं होता। पहले जमाने में एयर कंडीशनर नहीं था, अब एयर कंडीशन है, हीट के लिए हम हीटर्स इन्वर्टर्स यूज करते हैं, गुनाह थोड़ी है वो। तो ये समझने की बात है, इसका मतलब है वसाइल, जितने ज्यादा वसाइल इस्तेमाल करें ताकि तुम अपनी लिमिटेड जिंदगी में ज्यादा अच्छा समझो और समझाओ कुरान को। ठीक है, तो इस कलम से मतलब रिसोर्सेज हैं, दुनिया में जितनी चीजें हैं उनको इस्तेमाल करो, अल्लाह ने इसीलिए दी है ना। ठीक है, आगे चलते हैं जी। आखिरी पॉइंट आज का, मुसाबकत का जज्बा, पैशन जिसको कहते हैं, डेडिकेशन और पैशन, जुनून कोई काम करने का, वो आपके अंदर होना जरूरी है, मेरे अंदर होना जरूरी है। यानी जज्बा ही नहीं है आपको, कोई मोहब्बत कोई कनेक्शन ही नहीं आपका रब से बन रहा, तो आप क्या ही कर लोगे? कुरान भी क्या ही बिगाड़ लेगा, वो बात हो गई ना। आपके हमारे जो भी हम रास्ते शैतान के रास्ते पे चल चल रहे हैं उसका क्या ही बिगाड़ लेगा कुरान भी, अगर हमारे अंदर जज्बा ही नहीं है सीखने का। कुरान तो सभी के घर में है ना, कौन कितना फायदा ले रहा है। तो ये जज्बा जो है ना इंसान के अंदर, ये आ जाए तो इंसान दुनिया तस्खीर कर सकता है। ये जुनून, ये जज्बा इंसान को जो है उसको सही जगह इस्तेमाल करना। तो फीलिंग्स आ गई ना यहाँ, एहसास, इस चीज का जज्बा कि मुझे आगे बढ़ना है, उकाशा बिन महसिन की तरह। मुसाबकत, ये नहीं कि मेरे साथ वाले नहीं कर रहे तो मैं क्यों कौन सा कर लूं। तो हाँ जी, साथ वालों को नहीं मिल रहा जन्नत में वो दर्जा, आप ले लो। या आपने कहते हैं दोस्त कुएं में छलांग लगाएगा, वो बड़े कहते थे ना, तो तुम भी कुएं में ही जाओगे तो ठीक है फिर। तो अगर तुम्हें यही समझदारी लग रही है, खैर। तो कुरान मजीद सूरतुल मुल्क की आयत नंबर 2 का हिस्सा है, अय्युकुम अहसनु अमला, कौन तुम में से बेहतर होगा अमल में। इस पर गौर करें, ये बात मैं नहीं कह रही, ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मेरे और आपके लिए। इसका मतलब है कि तुम सब में इस वक्त क्लास में
जो सिस्टर्स हैं मैं देख रही हूँ उनके नाम भी आ रहे हैं माशाल्लाह, सबको सबको सलाम हो कि आप एफर्ट कर रहे हो अल्लाह के दीन के लिए, यहाँ आप आए हुए हो अभी भी। मैं और आप हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं, ठीक है, एक ही काम कर रहे हैं, एक ही कोर्स कर रहे हैं, एक ही सबक पढ़ रहे हैं, लेकिन 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 अल्लाह ताला ऊपर से देख रहे हैं, हमारा रिवॉर्ड एक जितना नहीं है। अल्लाह देख रहे हैं तुम में से कौन बेहतर है अमल में, किसको नंबर वन पे अल्लाह ने रखा है, ये मुझे और आपको नहीं पता, ये उस दिन पता चलेगा। इस वक्त कौन रिवॉर्ड ज्यादा ले रहा हो, किसका जज्बा कैसा है, किसकी मोहब्बत कैसी है, कौन कितनी नीयत से मौजूद है, कितने खुलूस से, कितने फोकस के साथ, किसकी इंटेंशंस आगे क्या हैं, किसका विजन क्या है, ये सारे मामलात मैं और आप जजमेंटल हो ही नहीं सकते, हम एक दूसरे को जज नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला, इसका मतलब है एक जैसा अजर नहीं मिलेगा हम में से हर एक को, तुम में से कौन कितना बेहतर है उसको उसके मुताबिक मिलेगा। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अय्युकुम, अय्यु का मतलब कौन है। कुछ देर पहले हमने एक लफ्ज पढ़ा था मन, उसका मतलब भी कौन था, ठीक है ना। अय्यु का मतलब भी कौन है, ये नया लफ्ज है, मैं आपको पहली दफा आज बता रही हूँ। कुम तुम सब, हु हम का यी कुम ना, ये हमने टेबल पढ़ा था लेसन 3 में। अहसन, अहसन होता है बेहतर, ठीक है, हसन अच्छे को कहते हैं, हसन ज्यादा अच्छा बेहतर, ठीक है। जैसे कबीर बड़ा, अकबर सबसे बड़ा, और सगीर छोटा, असगर सबसे छोटा। हसन बेहतर और हसन सबसे बेहतर, तो तुम में से जो सबसे बेहतर है वो सबसे ऊपर वाला दर्जा उसका, सबसे बेहतरीन जो प्लॉट्स हैं और सबसे बेहतरीन महल जो है वो उसको मिलेंगे, और जो उसको चाहिए होगा वो उसको मिलेगा। उसके बाद वाला दर्जा होगा, फिर उसके बाद वाला होगा तुम्हारे अमल के मुताबिक। तो तुम्हें दी बेस्ट चाहिए ना, तो तुम दी बेस्ट के लिए बेस्ट दी बेस्ट वाला काम भी करो, तुम्हारे एक्शंस सोचो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बहन भाई अच्छा काम कर रहे हैं दीन के लिए, मैं उससे भी आगे बढ़ने की कोशिश करूँ। तो ये मुसाबकत का जज्बा, आगे बढ़ जाने का जज्बा, ये होना चाहिए, ये भी कुरान सिखा रहा है। अमल, अमल अमाल उसकी जमा है, ये भी हमने पढ़ा है इन्नमल अमालु बिन्नियात में। तो इसका मतलब है नमाज पढ़ते हुए कौन अच्छा है, आपके ज़हन में आ रहा होगा कौन से अमल की बात करें सिस्टर सम्या। घरों में अपने अब रिश्तेदारों में रख रखाव, जो जिम्मेदारियां अल्लाह ने जिनके फराइज दिए हैं, जो कुछ भी पूरा करना है, उनमें कौन अच्छा है। ऑफिस में आप काम के लिए आए हो, आप अपने काम में कितने ईमानदार हो, कितने अच्छे हो। आपके जो इनफरादी काम है नमाज रोजा जिक्र, या इज्तिमाई काम जिनमें लोगों का भी फायदा है, जो आपने ज़कात देनी है, सदका खैरात करना है, आपने इस्लाह के काम करने हैं, दावत दीन का काम करना है, बहुत सारे काम हैं, उनमें कौन अच्छा है। इसका मतलब अमल से मतलब हर अमल आ गया, सिर्फ एक चीज नहीं देखी जा रही, आपका हर कदम देखा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो, और जो जितना बेहतर होगा अपने सारे कामों में वो उतना बेस्ट होगा। ये है पॉइंट, हर एक्शन जो हम करते हैं ये हम आंसरेबल हैं, माने या ना माने जवाब देना पड़ेगा। तो यही बात जो मैं भी कर चुकी हूँ कि क्लास में सबसे अच्छा कौन है ये अल्लाह ताला ही बताएंगे हमें, हम जज नहीं कर सकते। कितनी प्यारी बात है ये। तो एक जो बच्चों को ये भी सिखाना चाहिए कि वो इसलिए नहीं है कि वो दूसरों को नीचा दिखाएं या दूसरों की लेग पुलिंग करें, कॉलेज यूनिवर्सिटी में हर जगह दूसरों की लेग पुलिंग करें जी, आगे निकलने के लिए उसके नुकसान कर दिया, ये दीन नहीं सिखा रहा, इस पर तो डबल गुना मिल जाएगा। आप दूसरों को भी मोटिवेट करें, इसमें एक अलग दर्जे का, एक अलग कैटेगरी में रिवॉर्ड है कि आप दूसरों को सपोर्ट करें, साथ लेके आगे बढ़े, इसमें भी तो आपको रिवॉर्ड ज्यादा मिलेगा, आप साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ नाइंसाफी नहीं होगी, ये दुनिया की कोर्ट्स अदालतें नहीं हैं जहाँ जज को कुछ पता ना चले, अल्लाह को तो सब पता है आपकी नीयत। तो आप दूसरों की लेग पुलिंग ना करें, उनको भी सपोर्ट करें, लेकिन आगे से आगे बढ़ने की एफर्ट जारी रखें अमल में, अल्लाह को राजी करने में। ये नहीं कि मैं बस दूसरों के जितना ही करूं, उससे भी आगे बढ़े, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा, नियत करना, दुआ मांगना, सारी जो रिसोर्सेज हैं, फैसिलिटीज अल्लाह ने दी हैं, उनको इस्तेमाल करें अल्लाह के सामने, यानी जितनी जितना कुछ अल्लाह ने दिया उन सबको इस्तेमाल करें दीन को फैलाने में, सुभान अल्लाह। और जज्बे के साथ, शैतान जो है वो अपने काम में लगा हुआ है, अपने साजो सामान से लेस लेस है, और उसने कुरान जब आप शुरू करेंगे, पढ़ते हैं ना कुरान, खोलते हैं, सोचते भी हैं, यहाँ कुरान मजीद अल्हम्दुलिल्लाह इतने रखे हुए हैं मेरे पास, शैतान ना उस वक्त अंगारों पे लूट रहा होता है कि किसी तरह मैं इसके तवज्जो कहीं और दिल ले जाऊं, ये कुरान ना पढ़े सिर्फ। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर ये कुरान के साथ कनेक्ट करेगा तो फिर मेरी बात तो बिल्कुल पूरी नहीं होगी, राइट। जरा होल्ड कीजिए, मैं भी आपसे बात करती हूँ, जी आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप। इट्स एक्चुअली माई ऑनलाइन क्लास गोइंग ऑन, अगर आप इसको चेक कर लें, ठीक है।
اور جو بھی پاسورڈ ہو وہ آپ کو مجھے بتا دینا. آپ جسٹ فیور مجھے کر دیں, ٹھیک ہے, فائنڈ آؤٹ کر کے اسے سائن لگا کر اور پھر مجھے یہ دے دیجیے. تھینک یو ویری مچ فار دس فیور. اوکے, سو ہم کنٹینیو کرتے ہیں یہاں سے. سو رائٹ, تو یاد رکھیے شیطان کا بڑا ایکسپیرینس ہے, وہ اپنے جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی سکھاتا ہے کہ اس کو دنیا کی چیزیں دکھاؤ, اس کے دھیان کہیں اور چلا جائے. تبھی ہم کہتے ہیں ہاں پڑھ لیں گے قرآن کل پرسوں, آگے آگے لے جاتے ہیں اور موت آ جاتی ہے. تو اس لیے ذہن میں رکھیں, شیطان کو پتا ہے قرآن ہی وہ رستہ ہے, اگر یہ اس کے ساتھ جڑ گیا تو پھر میرے اٹیکس بڑے مشکل ہو جائیں گے. سو دس پوائنٹ از امپورٹنٹ. الحمد للہ ہم نے اس کو مکمل کر لیا ہے. تو ان 3 پوائنٹس کے حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں, پھر ہم چھوٹی سی بریک کریں گے. ایک سسٹر نے بھی ہینڈ ریز کیا ہوا تھا. جی آ رہی ہے الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن السلام الرحیم. علیکم. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. Thank you. وعلیکم السلام سسٹر. تھینک یو, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس وقت میں دیکھ رہی ہوں سسٹر امبر سلطانہ ہمارے ساتھ ہیں, سسٹر فرحین انور, فرزانہ نواز, کمل اجاز ملک, کنز الایمان, کے نام سے شاید سسٹر شاہین ہوں گی آئی تھنک, میمونہ یاسر, سعدیہ اقبال, سائمہ کے نام جی سے 2 سسٹر, سسٹرز کے ہیں. بیٹے کا نام ہے کے اس نے جی, اس خاقان. کو ری نیم کر لیں, اس کو ری تھینک یو. نیم کر لیں کائنڈلی. اور دوسرا سچ یہ بتاؤں, سائمہ. مجھے اتنی زیادہ نو ہاؤ نہیں ہے, بس چپ کر کے میں نے ہیڈ فون لگایا ہے اور آپ کی کلاس لے رہی ہوں. اچھا, چلیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی. اوکے, تھینک یو سو مچ. سائمہ کے نام سے 2 نیم ہیں, تو آپ پلیز اگر اپنے آپ کو کمپلیٹ نیم لکھیں تو پتہ چلے گا کہ کون سی سسٹر سائمہ ہے. یہ بڑا ضروری ہے, ورنہ پھر اٹینڈنس اس طرح سے معلوم نہیں ہوگا کہ کون سی سسٹر سسٹر سائمہ تھی. ایک تو سائمہ الطاف خان ہو گئی اور دوسری سائمہ بتا دیں گی. اوکے اوکے, ماشاء اللہ سسٹر. اور سسٹر شازیہ, سسٹر وجیحہ, سسٹر یمینہ, یس یمینہ معیز. ماشاء اللہ آپ سب کو بہت بہت سلام عرض ہے, اللہ آپ سے بہت راضی ہو. ہم گرامر کی طرف چلتے ہیں جی, آئیے قرآن سمجھتے ہیں. لیسن 18 بی پارٹ گرامر, اور اس میں فاعل کیا ہوتا ہے, مفعول کیا ہوتا ہے, فعل کیا ہوتا ہے, یہ بڑے خاص حصے ہیں جو ہم ان سارے لفظوں کے بنائیں گے. کن کے؟ فعل, فتح, جعل, یہ ہو گیا جی پہلا سیٹ. نصر, خلق, ذکر, عبد, یہ ہو گیا دوسرا سیٹ. ضربا تیسرا سیٹ, تیسرا پیٹرن. اور سمع, علم, عمل, یہ ہو گیا چوتھا اور آخری سیٹ. تو یہ ہے 11 ٹیبل جو ہم نے مکمل کرنے ہیں. ان سب فعل جو آپ کو نظر آ رہے ہیں, ان کا ہم نے ماضی بھی سیکھ لیا ہے, مضارع بھی سیکھ لیا ہے, امر بھی, اور یقیناً آپ کو ان کے اشارے بھی آگے ہوں گے اور وہ لفظ یاد بھی ہو چکے ہوں گے. اور وہ سارے لفظ جو آپ نے سیکھے ہیں ماضی, مضارع اور امر میں, وہ مذکر کے لیے تھے. آج ہم انہی کا فاعل, مفعول اور فعل بنائیں گے. تینوں ڈیفرنٹ ہیں, تینوں کے اشارے بہت انٹرسٹنگ ہیں. تو مسکراتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں. اپنے آپ کو ریفریش کیجئے, گہری سانس لیجئے. ربی زدنی علما, اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں, اور یہ وہ دعا ہے جس کے بارے میں آج ہم نے پراپر لیسن کا یہ حصہ تھا, ہم نے اس کو اسٹڈی کیا. ٹی پی آئی یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن ریکوائر ہے اگر آپ گرامر کو پوری طرح سمجھنا چاہتے ہیں. آپ کو سننا ہوگا توجہ سے, دیکھنا ہے جو چیزیں پوائنٹس آپ کو دکھائے جا رہے ہیں یہاں, دماغ کو استعمال کرنا ہے, سوچنا ہے, بولنا ہے. جب آپ کو کہا جائے بولیں تو بولیں, مائک آن کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا, آپ کو بول کر پریکٹس کرنی ہے, چاہے آپ اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, ہاتھوں کے اشاروں سے بتائیے, شو اٹ. ٹھیک ہے, دل سے, محبت سے, کوئی زبردستی تو نہیں ہے, ہم اپنی محبت سے اللہ کی کتاب سیکھ رہے ہیں, اور مل کر ٹیم میں ہم لوگ سیکھ رہے ہیں, جو اٹ سیلف جو ہے وہ موٹیویشن کا باعث ہوتی ہے, ایک دوسرے کے لیے سپورٹ محسوس ہوتی ہے کہ دیکھو میری 7 سسٹر بھی تو ہیں, وہ بھی تو کر ہی رہی ہیں نا. تو خیر, کون سے پوائنٹس ہیں, ذرا پہلا پوائنٹ بتائیے. سنیے, سنیے. دوسرا پوائنٹ, دیکھیے, دیکھیے, سوچیے, سوچئے, بولیے, بولیے, بتائیے, بتائیے, دل دل سے سے کیجیے, کیجیے, مل عمل کر مل کیجیے. کر کیجیے. کیجیے. تو اب کیونکہ یہ ہمارا ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو لاسٹ کلاس ہے آج,
और इसमें अब तो मेरा ख्याल है ये एक्सक्यूज होना ही नहीं चाहिए कि किसी को ये पॉइंट्स आते नहीं हैं। सो ये स्लाइड सामने ना भी हो तो आपको आने चाहिए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए दिल से मिलकर। और ईटीपीआई के ये सारी कंडीशंस और रूल्स हम इशारों से करते हैं, क्योंकि इशारे, हाथों के इशारे, क्योंकि इसकी ग्रामर में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और ये कोर्स है ही नहीं इशारों के बगैर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इतने इंपॉर्टेंट हैं इशारे। आगे चलते हैं जी। कुरान में कुल लफ्ज कितने हैं आपको बताया गया था अप्रोक्सीमेटली? 78,000। 78,000। 78,000। 78,000 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। वो लफ्ज जो कुरान में है, या तो वो इसम है, या वो फेल हैं, या वो हर्फ हैं। इसम वो हैं जो नाम और सिफत बता रहे होते हैं। फेल वो लफ्ज हैं जो कोई काम बता रहे होते हैं, काम हो रहा है या किया जा रहा है, और उसमें जमाना भी महसूस हो रहा होता है कि प्रेजेंट फ्यूचर, या प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर की बात है। वो एहसास भी होता है, काम करने वाले का भी होता है कि काम करने वाला वो है, वो सब हैं, आप हो, मैं हूं, आप सब हैं, हम सब हैं। तो करने वाले का एहसास भी होता है उसमें। असल में वो काम होता है। हर्फ वो सारे लफ्ज हैं जो जुमला बनाने के लिए इसम और फेल को आपस में कनेक्ट करते हैं, ताकि उनका रब्त बने और बामानी जुमला तश्कील पा जाए। और ये भी कह सकते हैं कि कुरान के वो सारे लफ्ज जो इसम या फेल नहीं है वो हर्फ होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप समझते जाएंगे, हुरूफ की पहचान भी आपको होना शुरू हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और फेल, मादी, मुदारे और अम्र हम अब तक पढ़ चुके हैं। यानी वो काम जो मुकम्मल हो चुका हो, वो काम जो अभी नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वो मुदारे है। और जिसमें किसी को काम करने का कहा जा रहा है, आप ये काम करो, आप सब करो, है ना। ये इशारा हमने किए थे लास्ट वेडनेसडे को। आप करो, आप सब करो, आप मत करो, आप सब मत करो। और हमने सारे जो अपने टेबल्स हैं, 11 के 11 टेबल, उनकी प्रैक्टिस कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। यकीनन आपको याद भी होगी। और ये है जी आपके 4 पैटर्न। दिस स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ताकि आप समझ सकें कि क्यों वही फेल हैं, कुरान के वर्ब्स हैं, अफाल हैं, उनको कैटेगराइज क्यों किया जा रहा है। क्योंकि उनमें खास फर्क है। अरबी में जबर जेर की तो सारी गेम होती है। अब जबर जेर में अगर इतनी वाज़ेह तब्दीली आ रही है तो ग्रुप अलग तो करना पड़ेगा ना। इसलिए फेल के अंडर 4 ग्रुप, 4 डिजाइन, 4 पैटर्न्स दिए गए हैं। पहले वाले में मादी इस पैटर्न पर होता है, फतह। मुदारे होता है यफ्ताहु, जबर जेर का इस्तेमाल ऐसे होता है। और अमर हमने लास्ट वीक पढ़ा था, इफ्ताह, लास्ट वीक और उससे लास्ट वीक। तू खोल, है ना। फतह उसने खोला, यफ्ताहु वो खोलता है, इफ्ताह तू खोल। तो एक इंसान जिसका जेहन खाली है, उसने जब जो पहली चीज वो पढ़ेगा वो उसके जेहन में फ्रेम बना देगी। तो ये पहला बाब जो है वो फ्रेम बना देता है कि एक माजी होता है, एक मुदारे होता है, एक अम्र होता है। अगले 3 को हम उसकी बेस पर मैयर करेंगे ना, कि अगले वाले में क्या फर्क है जो पहले वाले से अलग है। यानी नसरा, नसरा में माजी तो सेम आ रहा है, जबर ही है, फतह में भी जबर है, नसरा में भी। लेकिन जब हम मुदारे में जाते हैं तो वहां हमने फतह से यफ्ताहु बनाया था, वो खोल, उसने खोला, वो खोलता है, या वो खोलेगा। लेकिन जब हम नसरा के पैटर्न पर आए तो हमने देखा नसरा उसने मदद की, यनसुरु वो मदद करता है। तो फर्क कहाँ आया? सेकंड लास्ट हर्फ मुदारे में उस पे पेश आ गया, जबकि पहले वाले में सेकंड लास्ट पे जबर था। इसका मतलब है जो इस तरह के फेल होंगे वो फर्स्ट कैटेगरी में नहीं आ सकते, वो सेकंड में आएंगे जिनमें पेश है, ठीक है। और फिर अमर में भी आप फर्क देख रहे हैं, वहां था इफ्ताह तू खोल, यहाँ है उनसुर तू मदद कर। ये हमने लास्ट पढ़ा पढ़ा हुआ है लास्ट लेसन में। तो इसमें आपने देखा वहां इफ्ताह था जेर जज्म जबर, यहाँ पर है पेश जज्म पेश। तो जो इस वजन पर होंगे, जिनका मादी, मुदारे और अम्र इस जैसा होगा, नासरा, यंसुरु, उनसुर, वो सेकंड ग्रुप में आएंगे। आई होप इट्स क्लियर। तीसरे ग्रुप में वो आएंगे जिनमें माजी तो सेम है, फतहा, नसरा, दरबा, दरबा उसने मारा। लेकिन जब हम इसका मुदारे बनाते हैं, यानी प्रेजेंट फ्यूचर की बात करते हैं, तो हम दरबा से यद रबू भी नहीं बनाते, यद रूबू भी नहीं बनाते, हम कहते हैं यद रीबू। यहाँ पे जेर आ गया, सेकंड लास्ट हर्फ के नीचे जेर आ गया, इसलिए ये अलग ग्रुप है। क्योंकि पहले दोनों में सेकंड लास्ट के नीचे जेर नहीं आया था, तो ये उनका हिस्सा नहीं बन सकता। पहले वाले में सेकंड लास्ट ता पर जबर था, दूसरे वाले में सेकंड लास्ट स्वाद पर पेश था, तीसरे में सेकंड लास्ट रा के नीचे जेर है। तो बहुत ही वाजे हो गया आपको कि ये अलग ग्रुप है, इसको अलग ग्रुप बनाना पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल कि अब आपको कोई कंफ्यूजन है इसमें। इसी तरह यानी यद रिबू वो मारता है या वो मारेगा, जब उससे अमर बनाया तो अमर भी चेंज है। यानी जेर फिर जज्म फिर जेर। तो इदरिब तो मार, इस जबर जेर के साथ जितने भी फेल होंगे वो इस ज़राबा के ग्रुप में आ जाएंगे, ये उनका ग्रुप लीडर बन जाएगा। और आखिरी वाले पैटर्न में आप देख रहे हैं
کہ فرق شروع میں ہی آ گیا، یعنی سین کے نام سے جو پیٹرن آ رہا ہے اس میں فعل ماضی میں ہی تبدیلی آ گئی. اس سے پہلے والے تین سیم تھے، زبر زبر زبر، اور اب جو ہے سامع، درمیان والے حرف کے نیچے زیر آ گئی، تو یہیں پہ فرق واضح ہو گیا. جبکہ اس کا مضارع یسمعو اور امر اسمع بنا. تو فورتھ گروپ اور فرسٹ گروپ کے مضارع اور امر سیم ہیں. دیکھیں، یفتح یسمع، افتح اسمع، سمع اس نے سنا، یسمع وہ سنتا ہے، اسمع تو سن. تو فورتھ اور فرسٹ گروپ کے مضارع اور امر سیم ہیں، جبکہ ماضی میں فرق ہے. تو کہیں تو فرق ہے نا. سو آئی ہوپ آپ کو میں نے بہت ہی کم ٹائم میں بتا دیا ہے کہ ان میں فرق کیا ہے. سب کو کلیئر ہو گیا؟ ہاں جی. جی الحمدللہ. الحمدللہ. الحمد للہ. تو ہم نے ان کے ماضی کے ہم نے 6 لفظ پڑھے تھے، ہے نا. یعنی اس نے کھولا، ان سب نے کھولا، آپ نے، میں نے، آپ سب نے، ہم نے. پھر ہم نے مضارع کے بھی 6 لفظ پڑھے تھے. یہ سارے لفظ مذکر کے لیے تھے. ہم مذکر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں رائٹ ہینڈ سے. وہ کھولتا ہے، وہ کھولے گا، آپ کھولتے ہو، میں کھولتا ہوں، آپ سب کھولتے ہو، ہم کھولتے ہیں. یہ بھی 6 تھے، تو 12 ہو گئے. اس کے بعد 4 ہم نے امر میں پڑھے تھے، تم کھولو، تم سب کھولو، تم مت کھولو، تم سب مت کھولو. تو 12 13 14 15 16 ہو گئے، ہے نا. 16 لفظ کا ٹیبل ہم بنا چکے ہیں ان سب کا. آج ہم نے نئی چیز پڑھنی ہے، وہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ 16 لفظ کا ٹیبل آپ کے سامنے. کسی مذکر کے لیے اگر آپ ماضی میں بات کر رہے ہیں تو یہ 6 لفظ ہیں، مضارع میں کر رہے ہیں تو یہ 6 لفظ ہیں، اور امر کی کیٹیگری میں یہ 4 لفظ بنتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آج ہم نے ان 16 کے آگے 3 لفظ اور لگانے ہیں. لیسن 18 میں 3 لفظ اور لگانے ہیں. پہلا لفظ کہلائے گا اسم فاعل، دوسرا کہلائے گا اسم مفعول، اور تیسرا کہلائے گا مصدر. آپ کے ذہن میں یقیناً ایک سوال آیا ہوگا کہ ہم تو فعل کے ٹیبل پڑھ رہے ہیں، فعل کے ٹیبل میں اسم کہاں سے آ گیا؟ تو یاد رکھیں، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، ذہن میں آنا چاہیے. ٹیبل تو یہ فعل کا ہے، اس نے کام کیا، وہ کرتا ہے یا کرے گا، تم کام کرو. لیکن کام کرنے والا وہ تو کوئی شخص ہی ہے، اس لیے وہ اسم بھی ہوگا، مطلب وہ اسم کی کیٹیگری میں آ جائے گا. جس کے بارے میں کوئی کام ہو رہا ہے، آبجیکٹ، سبجیکٹ، آبجیکٹ، وہ بھی کوئی چیز، کوئی شے، کوئی شخص ہے، وہ بھی اسم کی کیٹیگری میں آئے گا. اور کام کا نام، یہ جو اتنے بڑے بڑے آپ ٹیبل بنا رہے ہیں، کوئی تو کام کا نام ہے. کام ہے کیا؟ تو کام کے نام تو خود اسم ہوتا ہے. کام ہے کیا؟ وہ اسم ہوگا. تو فعل کے آخر میں آنے والے یہ 3 لفظ فعل کا حصہ ہیں، فعل کے ٹیبل کا، لیکن ہے اسم. یہ بات آپ نے بھولنی نہیں ہے، اس لیے اس کا پورا نام ہے، فاعل نہیں ہے، اسم فاعل، کام کرنے والے کا نام. اس کا اشارہ یہ ہے، دیکھ لیں جی، رائٹ ہینڈ سے، کیونکہ ہم مذکر کی بات کر رہے ہیں، ابھی مؤنث کی بات شروع نہیں ہوئی. مذکر، رائٹ ہینڈ سے آپ کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں، کوئی چیز پکڑا رہے ہیں. یہ دیکھیں، یہ پن ایک میرے پاس رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ پن تو میں یہ آپ کو دے رہی ہوں، تو میں اس طرح سے دے رہی ہوں. تو یہ اشارہ ہوگا ہاتھ کا، یہ اشارہ آپ کریں گے اسم فاعل کا. اسم فاعل، کام کرنے والا. جو ریسیو کرے گا پن، وہ یوں کرے گا نا ہاتھ سے. تو آپ رائٹ ہینڈ سے ہی، کیونکہ مذکر کی بات ہو رہی ہے، جب آپ یوں کر لیں گے کچھ ریسیو کرنے کے لیے، تو آپ کہیں گے اسم مفعول، جس پہ کام سے اثر پڑ رہا ہے. یعنی ایک کوئی چیز دے رہا ہے اور ایک کوئی چیز ریسیو کر رہا ہے. تو دینے والا اسم فاعل ہوگا، ریسیو کرنے والا اسم مفعول ہوگا. تو اشارے سمجھ لیں، رائٹ ہینڈ سے اسم فاعل، اسم مفعول. مصدر از دا مین ورڈ، امپورٹنٹ ورڈ. کام کا نام ہے، یہ آخر کام ہے کیا؟ تو اتنا سالڈ لفظ ہے، جیسے آپ کہتے ہیں تکبیر، اللہ اکبر، یہ مکہ بنا کر ہاتھ کا، اس طرح آپ مصدر کا نام بولتے ہیں. یعنی کام کرنے والا، اسم فاعل، کام جس پر کیا جا رہا ہے یا جس پہ اثر پڑ رہا ہے، جو آبجیکٹ ہے، اسم مفعول. اور کام کا نام، کام کا نام کیا ہے؟ کام کرنا، وہ ہے مصدر، اس کا اشارہ یہ ہوگا. تو یہ 3 اشاروں سے آج ہم سمجھتے ہیں. یہ دیکھیں، فعلا ہم نے پڑھا تھا، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. اس نے کیا، ان سب نے کیا، آپ نے کیا، میں نے کیا، آپ سب نے کیا، ہم نے کیا. یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو. وہ کرتا ہے، وہ کرتے ہیں، تم کرتے ہو، میں کرتا ہوں، تم سب کرتے ہو، ہم کرتے ہیں. افعل، افعلو، تم کرو، تم سب کرو. لا تفعل، لا تفعلو، تم سب مت کرو، تم مت کرو، تم سب مت کرو. یہ ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ اسی ہاتھ سے کہیں گے فاعل، کرنے والا، فاعل، فاعل، مفعول، فعل. تو فا عین لام میں آپ نے کیا کیا؟ فا اور عین کے درمیان میں الف لگایا تو بن گیا فاعل.
फाइल बन गया। फा आइन लाम के शुरू में मीम लगा दिया और सबसे शुरू में मीम लगाया और आइन और लाम के दरमियान वाव, तो बन गया मफऊल। इसी पैटर्न पर आप बाकी से बना सकते हैं, बाकी अफाल की इसम फाइल इसम मफूल और फेल बना सकते हैं। फेल उन काम का नाम है, वो किसी भी तरह का हो सकता है नाम। तो आगे चलते हैं जी। आप सबसे पहले फतह यफ्ताहु इफ्ताह में आप बताएंगे कि कौन कौन से 3 टेबल्स आते हैं। एक तो फतह आता है, और कौन सा आता है, कौन बताएगा? जाला आता है, फाला आता है। वेरी गुड सिस्टर शबाना, जाला, सो फाला। वेरी गुड। फतह फ़अला जाला, फतह ग्रुप लीडर है तो फतह फ़अला जाला। इन तीनों के अगर हमें बनाने हो, अगर फ़अला से बना है फ़ाइल मफ़ऊल फ़िल, तो फतह से क्या बनेगा? फ़ाइलुन था ना, फ़ाइलुन मफ़ऊलुन फातिहुन फ़ातिहुन फातिहुन मफ्तूहुन मफ़तूहुन फतहुन फ़तहुन। फतहु ठीक है। जाला से जाइलुन मजऊलुन मजऊलुन जालुन 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 जालुन। ठीक है। बनाना कोई भी चीज, इसको हम देख लेते हैं। ये देखें, ये बना काम करने वाला जिस पे असर पड़ा और काम करना। अब आप लोग जो पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम ये पढ़ रहे हैं, तो वो इशारों से पढ़ें, क्योंकि अगर आप अभी इशारे याद करेंगे आपको फिर आगे जाके प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये देखें जी, हमारा टेबल यहाँ तक कितने लफ्ज बन गए? 17, 18, 19 लफ्जों का टेबल बन गया, क्योंकि हमने इसमें इसम फाइल ऐड किया, इसम मफूल और मसदर। और वो क्या है फाला का? फाइलुन मफऊलुन फाइलुन फेलुन। ठीक मफऊलुन है। हाँ। फेलुन अब इसी तरह आपने फतहा से फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन जिसको खोला जाए या खोला गया, फतहुन खोलना। अब फातिहुन कोई दरवाजा खोलने जा रहा है, तो वो खोलने वाला शख्स जो है वो फातिहुन होगा। दरवाजा है जिसको खोल रहा है, तो दरवाजे को हम मफ्तूहुन कह सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझेंगे। फतहुन खोलना, फातिहुन मफ्तूहुन फतहुन। उम्मीद है आप मेरे साथ साथ इशारे करके समझ रहे हैं, क्योंकि लेसन के बाद आप करेंगे ना खुद से, तो फिर आपको मेहनत ज्यादा लगेगी। साथ साथ याद कर लें, आसानी होती है। इसी तरह जाला हमने पढ़ा, उसने बनाया। यजअलु वो बनाता है। इजअल तू बना, ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम बना रहे हैं जाइलुन बनाने वाला, मजऊलुन जिस चीज को बनाया जाए, जालुन कुछ भी बनाना, यानी काम कौन सा हो रहा है? बनाने का काम हो रहा है, टू मेक समथिंग। जाइलुन मजऊलुन जालुन। ठीक है। सो ये है। दूसरे सेट में अगर हम आते हैं, नसरा नून सेट है। नसरा उसने मदद की, यंसुर वो मदद करता है, उनसुर तू मदद कर। तो इससे हम बनाएंगे नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की जाए, और नसरुन मदद करना। ये बड़े इंटरेस्टिंग हैं। आम रूटीन में हम एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं, कोई हमारी कर रहा होता है। तो जब मैं मदद कर रहा हूं, मुजक्कर हूं, तो मैं नासिर हूं। जब मेरी कोई मदद कर रहा है तो मैं मंसूर हूं। और काम कौन सा हो रहा है? मदद करना, टू हेल्प, नसरुन। जी बताएं जरा, मदद करने वाला नासिरुन नासिरुन नासिरुन। इशारा भी करे राइट हैंड से, राइट हैंड से। नासिरुन जिसकी मदद की जाए, मंसूरुन मंसूरुन जिसकी मदद की जाए, मंसूरुन मदद करना। नसरुन बताए ना, माइक ऑन है, आवाज नहीं आ रही। नसरुन 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 नासिरुन मदद करना। मंसूरुन नसरुन। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलते हैं। ये देखिए जी, ये भी आपका टेबल 6 लफ्ज मादी के आपने सीखे हुए हैं, मुदारी के 6, 4 आपने पिछले 2 हफ्तों में जो है वो अमर के सीखे थे। और अब आपको बताया जा रहा है नासरा के अंदर इसम फाइल ऐड हो गया, इसम मफूल ऐड हो गया और मसदर ऐड हो गया। तो नासरा का इसम फाइल क्या है? इसमें फेल होगा नासिरुन। नासिरुन। सॉरी नासिरुन सिस्टर, आप क्या कह रही हैं? आई डोंट नो। चलें, बताइए नासरा का इसम फाइल क्या है? नासिरुन नासिरुन नासिरुन। इसम मफूल क्या नासिरुन है? मंसूरुन मंसूरुन मसदर क्या है? नसरुन नसरुन वेरी गुड। यानी मदद करने वाला, जिसकी मदद की जाए और मदद करना। इसी तरह नसरा के पैटर्न में खला का हमने पढ़ा था। खला का उसने पैदा किया, यखलुकु वो पैदा करता है, उखलुक तू पैदा कर। ये मैं आपको एक एक लफ्ज बता रही हूँ। इसमें इसम फाइल क्या बनेगा? लिकुन खालिकुन खालिकुन पैदा करने वाले को कहेंगे, जैसे हमारा रब खालिक है ना। खालिकुन ठीक है। इसम मफऊल बताएं। मखलूकुन मखलूकुन मखलूकुन
मखलूकुन, जिसको पैदा किया गया, तो मखलूक मैं और आप हैं। कितना ये लफ्ज तो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। पैदा करना, खल्कुन खल्कुन खल्कुन, खल्कुन परफेक्टली फाइन, खल्कुन वेरी गुड। खालिकुन, मखलूकुन, खल्कुन, खालिकुन, मखलूकुन, खल्कुन। कल अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह हमने जाकरा का टेबल पढ़ा था। जाकरा उसने याद किया, यज़कुरु वो याद करता है, उज़कुर तू याद कर। तो ये हमने छः छः और चार ये टोटल लफ्ज जो है वो सीखे थे। तो आज हम उसका इसम फाइल बनाएंगे जाकरा का। तो क्या बनेगा इस्म फाइल? जाकिर जाकिरुन जाकिरुन, याद मशकूरुन करने वाला। रायत करने वाला। ठीक है, याद करने वाला। मशकूर एक मिनट आगे जब मैं पूछूं तब बताएं। मशकूरुन सबको सोचने का मौका दें। याद करने वाला जाकिरुन, जिसको याद किया गया मजकूरुन मजकूरुन मशकूरुन मजकूरुन, वेरी गुड। जिसको याद किया जा रहा है उसको मजकूर कहते हैं अरबी में। और याद करना जिक्र जिक्रुन जिक्रुन, दैट्स ग्रेट। जाकिरुन, मजकूरुन, जिक्रुन, जाकिरुन, मजकूरुन, जिक्रुन, दैट्स ग्रेट। इसी तरह आबादा का टेबल हमने पढ़ा था। आबादा उसने इबादत की, याबुदु वो इबादत करता है, उबुद तू इबादत कर। ये सब नून वाला पैटर्न चल रहा है, पेश वाला, जिसमें पेश ज्यादा आती है। तो आबादा से इसम फाइल बताएं। आबिदुन आबिदुन आबिदुन, इबादत करने वाला। आबिद हम्म कौन होते हैं? हम इबादत करने वाले। आबिद खातून हो तो उसको आबिदा कहते हैं, वो हम आगे सीखेंगे। ठीक है, जिसकी इबादत की जाए। माबूद माबूदुन हाँ, हमारा रब, माबूद। अल्हम्दुलिल्लाह, उर्दू बोलने वालों को ये फायदा है कि लफ्ज हमें बहुत सारे आते हैं, क्योंकि अरबी से ही हमने बहुत सारे लफ्ज लिए हैं। और इबादत करना, इबादतुन इबादतुन इबादतन। तो इसका पैटर्न बिल्कुल वैसा नहीं है। काम का नाम किसी भी पैटर्न पर आ जाता है। इबादत, इबादतुन, आबिदुन, माबूदुन, इबादतुन। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हो गया जी, हमारे दो सेट हो गए। तीसरा सेट में एक ही वंदना टेबल अभी तक है, एक्सक्यूज मी जो है टीचर ज़राबा। ज़राबा उसने मारा, यदरिबु वो मारता है, इदरिब तू मार। तो इससे इसम फाइल बनेगा दारिबुन, मारने वाला। इसम मफूल क्या बनेगा? मदरूबुन मदरूबुन जिसको मजरूबुन मारा जिसको गया। मारा जाए। और मारना एक्सक्यूज मी टीचर जरब जरबुन ज़रब। जी सिस्टर। टीचर अभी आप जैसे आपने जो मजदर बनाने का तरीका बताया था जो मुझे समझ में आ रहा था तो मुझे लग रहा था कि सेकंड लेटर पे जो है वो सुकून आएगा लेकिन जो आबिदुन का जो मजदर बना था ये ऐसा नहीं बना था। सिस्टर हमेशा ऐसा नहीं होगा, बल्कि अभी तो आप, अभी तो आगाज है, अभी आगाज सफर है। ठीक है, अच्छा कहते हैं ना, अच्छा अभी आगाज सफर है, अभी बड़े रूल्स हमने पढ़ने हैं। तो ये तो अभी अच्छा समझें कि अभी तक इसम फाइल और मफूल सेम चल रहे हैं। आगे इनमें भी तब्दीलियां आ सकती हैं। ठीक है, मजदर क्योंकि काम का नाम होता है, तो ये तो खुश हों कि कुछ ना कुछ मजदर मैच हो रहे हैं। बहुत सारे काम का नाम जिस तरह से है उसी तरह से है। वो हमें समझने के लिए अगर कुछ ट्रिक्स मिल रही हैं तो अच्छी बात है। हालांकि उर्दू में तो ये बेनिफिट भी नहीं होता, ये सिर्फ ठीक है। तो ऐसी कोई 100% कंडीशन नहीं है, लफ्ज तब्दील हो सकते हैं। इस चीज को ध्यान में रखें, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए दारावा का आपने टेबल जो है वो पूरा देख रहे हैं आप। मादी, मुदारे और अम्र, और फिर हमने तीन लफ्ज ऐड कर लिए मजीद। आखिरी सेट हमारा बनता है समिया। ठीक है, समिया यस्मा व इस्मा, यानी उसने सुना वो सुनता है, तू सुन। इससे इसम फाइल क्या बन रहा है? सामिउन समीउन सामिउन सुनने वाला, सुनने सुनने वाला वाला। शख्स जो सुन रहा है। और जिसको सुना जाए, मस्मून मसमून मसमून मुन, वेरी गुड। सुनना, सामुन समझ, यानी काम क्या हो रहा है? उसने सुना वो सुनता है, तू सुन। काम क्या हो रहा है? सुनने का काम हो रहा है, टू लिसन। तो यहाँ मुझे बताएं, हमारी क्लास में सामे कौन है? हम लोग हम लोग हैं। हम लोग तालिब इल्म हम माशाल्लाह। लोग मसमू कौन है? स्टूडेंट हैं। आप हैं टीचर वेरी गुड, वेरी गुड। टीचर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सामीन हम बोलते हैं ना प्रोग्राम्स में, सामीन, है ना, इस तरह का लफ्ज भी हम बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो समिया के पैटर्न से फिर हम दो और हमने लफ्ज पढ़े थे। आलिमा, उसने आलिमा जाना। आमिला अमिला, उसने अमल किया। तो आलिमा उसने जाना, यालमू वो जानता है, इलम तू जान। इससे इसम फाइल क्या बन रहा है? आलिमुन 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 आलिमुन, आलिमन जानने वाला। आलिम हम कहते हैं ना, आलिम दीन, आलिम रियाजी, कुछ भी कह सकते हैं, उस चीज का आलिम है ये। मास्टर, जानने वाला, है ना, इल्म वाला।
और जिसको मालूम हो गया, जिसको जाना गया, ये दोनों सेंसेस में आती हैं, उसको क्या कहेंगे? मालूम मालूम आलिमुन, मालूमुन। मालूम और जाना, टू नो, इल्मुन इल्मुन इल्मुन, इल्मुन, इल्म, इल्म। ठीक है, आलिम। अगर हम तनवीन हटा के उर्दू के अंदाज में पढ़ें तो हम कह सकते हैं आलिम, मालूम, इल्म। अरबी में भी ऐसे पढ़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये अफ़आल के टेबल है तो इसमें अप्रिशिएट किया जाता है कि आप आखिरी हरकत को साकिन नहीं करेंगे। मादी, मुजारे और अमर में तो कर ही नहीं सकते ये, क्योंकि तीन लफ्ज इसम में आते हैं ना। इसमें इजाजत है, आप इसको आलिम, मालूम और इल्म पढ़ सकते हैं इसम में, सादगी के लिए, सिंपल पढ़ने के लिए। लेकिन आप, बेहतर है कि टेबल की प्रैक्टिस में आप आखिरी तनवीन को पढ़ें। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि दो पेश मौजूद। और लिखने में तो जरूर लिखेंगे, याद रखिए अगर आपको कभी लिखना हो। अमिला, उसने अमल किया। या अमलू, वो अमल करता है। ई अमल, तू अमल कर, ये हम पढ़ चुके हैं। इसम फाइल बताएं। आमिलुन आमिलुन, आमिलुन अमल करने वाला। अमल करने वाला, मामूलुन एक मिनट, जिस मैंने पर सिर्फ अमल पहला किया पूछा गया। है। मैंने तो पहला पूछा सर, जल्दी नहीं करें, याद करें साथ साथ। अमल करने वाला आमिल है। इसम मफऊल क्या है? मामूल मामूलुन मामूलुन। मामूल उर्दू में कहते हैं ये मामूल है, यानी जिस पे अमल किया जा रहा है, ये मामूल बन चुका है ना। हम कहते हैं आमिल, मामूल, आमिलुन, मामूलुन। और अमल करना, अमलुन अमलुन, अब आप देखें आमलुन पिछले पिछले काफी सारे मजदर हमने पढ़े हैं जिसमें मजदर के दरमियान में जज्म आ रहा था। इसको आप जज्म के साथ नहीं पढ़ सकते, गलत हो जाएगा। ये अमलुन कभी भी नहीं होता, अमल, अमल होता है, तो अमलुन पढ़ेंगे आप। ये गलती अक्सर स्टूडेंट कर देते हैं, अमलुन लिख देते हैं। अमलुन है, अमल, अमल होता है ना। और दूसरी, ये जो आमिल का लफ्ज है, ये आमतौर पे हमारी सोसाइटी में आमिल बाबा के लिए यूज हो रहा होता है। वो जो जादू का अमल करेगा तो हमारे मसले हल होंगे। इंतहाई जो है वो कम इल्मी के अंदर इंसान इस तरह की हरकतों में पड़ जाता है और जिंदगी जाया करता है। खैर, हर अमल करने वाले को, एक्शन करने वाले को आमिल कहा जाता है अरबी में। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रैक्टिस की है, बहुत मजा आया, आप लोग बड़े एक्टिव रहे। अब जो इससे बोलचाल हम अगर कर सकते हैं ना, तो दो दो इशारे आएंगे, बहुत मजा आएगा। दो इशारे, हल, क्या, अंता, तुम, फाइलुन, अमल कर, कुछ करने वाले हो, काम करने वाले हो। क्या तुम काम करने वाले हो? आप जवाब क्या देंगे? नाम, नाम अना अना फाइल फाइलुन अना फाइलुन। फाइलुन जी हाँ, मैं काम करने वाला हूँ। हल अंतुम फाइलून। अब गौर से देखें, फाइल काम करने वाला था, और अगर इसकी जमा हो, वाव नून आ रहा है, तो आप इसी इशारे को यहां ले जाएंगे। वैसे जो सीनियर हैं, फाउंडर हैं, उन्होंने इसका ये इशारा भी बताया है। फाइल और फाइलून तीन दफा यूं कर दें, लेकिन वो डिफिकल्ट है तो वो कहते हैं सादा वाला इशारा भी कर सकते हैं। फाइलुन, फाइलून, फाइलून, फाउलून वाला। हल अंतुम फाइलून, क्या तुम सब काम करने वाले हो? नाम, हम नहनु नहनु फाइलुन जी जी हाँ, हाँ, हम नाम सब काम करने फाइल वाले काम हैं। करने काम वाले। करने वाले। वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह। हल अंत फातिहुन, क्या तुम खोलने वाले हो? फॉर एग्जाम्पल कुरान। नाम, नाम अना नाम फातिहुन। आना अना फातिल फातिहुन जी हाँ, मैं मेरे साथ, खोलने वाली जी हूँ। मैं, हाँ। बोलने वाले वेरी गुड। हलिल मस्जिदु मफ्तूह, इसमें आप एक ही इशारा करेंगे, क्या मस्जिद खुली हुई है? नाम इशारा नाम ये अल करिए। मस्जिदु अल अल मफ्तूह मस्जिद 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 मफ्तूहुन मफ्तूहुन। जी हाँ, जी, मस्जिद खुली। मस्जिद खुली हुई। खुली हुई है। तो यहाँ इसम फाइल आ रहा है, ठीक है। इसी तरह आप ये बाकी जुमलों की, लफ्जों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको मैं पूछ लेती हूँ। हल अंत नासिरुन, क्या नाम, अना अना नासिर, नासिर, मदद करने आना वाले हो? नासिर मैं नासिर हूँ। जी हाँ, मैं मदद करने वाला हूँ, ठीक है। मैं हल मदद करने अंत, वाला हूँ, सॉरी, मैं मदद करने वाला हूँ। हल अंत मंसूर, क्या तुम हो जिसकी मदद की गई? नाम, अना अना मंसूर, अना जी हाँ, मंसूरुन मैं हूँ जिसकी मदद की गई। हाँ, या मेरी मदद की गई है, आप इस अंदाज में इसको समझ सकते हैं। हल अंत जाकिर, हल अंत जाकिरून, ये सारे आप इसी तरह। हल अंत आबिद, इबादत करने वाले हो? आप कहेंगे नाम अना आबिद। हल अंतुम आबिदून, क्या तुम सब इबादत करने वाले हो?
नाम नहनु आबिदून, जी हाँ हम इबादत करने वाले हैं। आखिरी सवाल अगर मैं कहूँ, हल जिक्र इबादा, तो ये जिक्र और इबादा क्या है? इसम फाइल है, मफूल है, या मसदर है? जिक्र 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 इबादतुन जो है ना वो जिक्र तो इस्म है, इबादा जो है वो इस्म फाइल है, है। इबादत है। जिक्र मस्दर है। जिक्र जिक्र काम भी है। मसदर है और इबादा भी मसदर है। अभी आपने जाकरा के टेबल में पढ़ा था, जाकिर, मजकूर, जिक्र, ये पढ़ा था आपने, जाकिरुन, मजकूरुन, जिक्रुन। तो ये जिक्र भी मसदर है और आबिद, माबूद, इबादा, ये भी मसदर है। इसलिए मैंने पूछा था, ये दोनों मसदर आ रहे हैं, इसमें दोनों में ये वाला इशारा होगा। क्या याद करना इबादत है? कितनी खूबसूरत बात है ये, जवाब दें। नाम, नाम जिक्र जिक्र इबादा। इबादा जी हाँ, जिक्र करना यानी रब को याद करना इबादत है। बहुत खूबसूरत सवाल जवाब है ये, तो आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह हमने, जी सिस्टर कोई सवाल है आपका अभी? हाँ जी, बाजी ये एक सेंटेंस में दो फेल आ सकते हैं, जैसे अभी पीछे। अभी तो जब आएंगे फेल तो हम बात करेंगे, अभी तो दो मजदर आए हैं ना। बिल्कुल, अच्छा, अच्छा, जुमला सही बन रहा है तो क्यों नहीं आ सकते? ठीक। एक काम की बात हो रही है कि ये काम करना इबादत है, तो इबादत का जो लफ्ज है वो मस्दर है, एक काम का नाम है। याद करना एक दूसरे काम का नाम है, सो व्हाई नॉट। ठीक। चलिए, अब हम चलते हैं जी अपने आखिरी कॉन्सेप्ट की तरफ, जो 19 बी है, और वो कम टाइम लेगा क्योंकि इसमें तो आपने तीन लफ्जों को आपने समझा है, वहां सिर्फ एक मोनस को समझना है। सो विल टेक अ फ्यू मिनट्स इंशाल्लाह। और 19 बी में और आपका 100% चीजें जो हैं, कॉन्सेप्ट QC1 के मुकम्मल हो जाएंगे। ठीक है, आइए हम उसको देखते हैं। दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू। और लेसन 19 मोनस के सीगे। तो सबसे पहले आपको मुबारक हो कि जाते जाते हम कुछ मोनस की भी बात कर रहे हैं। तो हमने जो टेबल पढ़े थे, फतह, नसरा, दरब, सामिया, अब तक हमने जितने लफ्ज पढ़े हैं वो सब मुज़क्कर के लिए थे। चाहे वो मादी हो, चाहे वो मुदारे हो, चाहे वो अमर हो, इसम फाइल, इसम मफूल, वो सब मजदर के लिए, मुज़क्कर के लिए थे। ठीक है, मजदर तो काम का नाम होता है। तो मोनस के सीगे कैसे होंगे आप यहाँ देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, TPI, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन को जहन में रखते हुए हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। मोनस के सीगे, वो ये कह रहे हैं, आपको हमने टेबल सिखाया था हुआ हुम का, उसके आखिर में हमने मोनस के लिए क्या लफ्ज बोला था? हुआ अगर मुजक्कर है तो मोनस क्या था? या हिया या हिया। हिया हुआ ही, हिया या शी। हुआ वो एक मर्द, हिया वो एक औरत, ये हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह हमने पढ़ा था हु, उसे एक मर्द की कोई चीज है, हिज। तो हा, हर, जैसे रब, रजी अल्लाह अन्हु, रज़ियल्लाहु अन्हा, है ना, ये हाँ। पढ़ा था। अब वो आपको सिर्फ दो बातें इसमें सिखाएंगे और ये लेसन एंड हो जाएगा। आपने जो मादी का टेबल बनाया है वो कह रहे हैं उसके आखिर में आप एक मोनस लगा दो, और जो मुदारे बनाया है उसके आखिर में भी एक मोनस लगा दो। ये 6 के 6 लफ्जों का मोनस आपको QC4 में पढ़ाएंगे। अभी नहीं पढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ एक लफ्ज ऐड कराया जा रहा है QC1 में। जैसे आपने पढ़ा था फाला, उस एक मर्द ने कोई काम किया, तो उसके बाद उस उन सब ने, तुमने, मैंने, तुम सब ने, हमने, इतना कुछ मोनस का एकदम नहीं सिखाया जा रहा ताकि आपको कोई याद करने में ज्यादा दिक्कत ना हो। वो कह रहे हैं जब आप एक मर्द की बात करें, वो एक मर्द, उसने कोई काम किया, आप उसी तरह एक खातून के लिए क्या लफ्ज यूज करेंगे, बस इस कोर्स में आपको इतना समझाएंगे। यानी वो जो ही है, उसी की जो शी, अगर वही काम कर रही है तो क्या लफ्ज यूज होगा। जैसे फाला उसने किया, तो आप मोनस बनाते हुए आखिर में ता सुकून के साथ लगा देंगे, यानी जज्म के साथ। तो फायला उसने किया, फालत उस औरत ने किया। फायला उस एक मर्द ने किया कोई भी काम, फायलत उस औरत ने किया। नसरा उस मर्द ने मदद की, नसरत उस औरत ने मदद की। ठीक है, जराबा उस मर्द ने मारा, जराबत उस औरत ने मारा। अगर मैं कहूँ समिया उस मर्द ने सुना, तो मुअन्नस क्या होगा? समियत समियात उस औरत ने सुना, समियात उस समियात औरत ने उस औरत सुना, ने सुना। ने तो सुना। आपको रूल पता चल गया है कि माजी का मोनस कैसे बनेगा। पहला लफ्ज का इशारा लेफ्ट हैंड से इधर जा रहा है, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट साइड पे, ये आपको पहले ही पता चल गया। इसी तरह जो आपने मुदारे पढ़ा है, मुदारे में आपका इशारा यहाँ गया था, यफ़अलु वो एक मर्द कोई भी काम करता है, फिर यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु। तो पहला लफ्ज क्या था एक मर्द के लिए? यफ़अलु यफ़अलु वो करता है,
जी ठीक है, फिर आपने कहा यफअलूना, फिर कहा तफअलू। तो जो लफ्ज आपने यहां यूज किया था मुदारे में, इंटरेस्टिंग बात है कि हमेशा वही लफ्ज मुअन्नस में आएगा, यानी वो तफअलू था, आपको याद है? यफअलू, यफअलूना, तफअलू। तुम एक मर्द करते हो कोई भी काम, उसी लफ्ज को हमेशा अरबी में मुअन्नस के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये दो इशारे मुदारे में हमेशा सेम होंगे, याद रख लें। अगर यहाँ तफआलू है तो सोच लो यहाँ भी तफआलू होगा, यानी फा आइन लाम से पहले ता और जबर आ रहा है। ये मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, ये देखें। फतहा से फतहा, उसने खोला, उस मर्द ने, उस खातून ने खोला, फतहत। ठीक है। नसरा से क्या बना? नसारा नसरत, नसरत गरबा से, दराबत दराबत, दरबत समिआ से, समियात, समियात समिअत। ये तो हो गया मादी। मुदारे में यफ्ताहु, वो खोलता है, यफ्ताहु तफ्ताहु, बस तफ्तहू, वो तू खोलती है, खोलती है। वो खोलती है। खोलती है। मुदारे है ना, खोला नहीं कहेंगे, वो माजी होता है। खोलती है या खोलेगी, ये कह सकते हैं मुदारे में। यनसुरु, वो मदद करता है या करेगा। तंसुरु, वो मदद तंसुरु, करती है या वो वो मदद मदद करेगी। करती है मदद या करती करेगी। है या करेगी। वेरी गुड, वेरी गुड। यजरिबु, वो मारता है या मारेगा। तदरीबु, वो तदरीबु तदरीबु, मारती वो मारती मारती है है या या मारती या मारेगी। मारेगी यस्माउ, वो सुनता है या सुनेगा। तस्मऊ, वो सुनती तस्महु है या सुनेगी। सुनता सुनती है है, या वो सुनेगी। सुनती है या सुनेगी। इसका मतलब है कि आपको ये लेसन 19 आपका हो चुका है, इतना आसान है। देखें कि आपको नजर आ गया। अब हमारा टेबल मुकम्मल हो चुका है। क्यूसी वन के लिए मैंने आपको बताया था 21 वर्ड्स का टेबल होगा। तो माजी में पहले लफ्ज 6 हैं मुजक्कर के लिए, और आखिरी एक मुअन्नस है, 7 हो गए। मुदारे में पहले 6 लफ्ज मुजक्कर के लिए हैं, राइट हैंड का इशारा, और आखिरी एक लफ्ज मुअन्नस का है, लेफ्ट हैंड का इशारा। तो ये भी 7 हो गए। 7 और 7 14 होते हैं, 14। और उसके बाद अम्र में 4 लफ्ज बनते मैं हैं, आ रही हूँ। 15 16 17 18। उसके बाद इसम फाइल, इसम मफूल और मस्तर 19 20 21। ये 21 वर्ड्स आपको QC1 फाइनल क्विज के लिए आने चाहिए, और इनके इशारे, इनके मानी पता होने चाहिए। वेरी सिंपल। 21 में से 19 मुजक्कर, मतलब 19 तो नहीं कहेंगे आप, क्योंकि ये मस्तर भी है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो मुजक्कर की कैटेगरी में आ रहे हैं। सिर्फ 2 मुअन्नस हैं, बस ये याद रखनी है। ठीक है। तो कौन यहाँ पर चले, मैं आपको ना आपके इशारों की प्रैक्टिस के लिए ये पूरा टेबल बता देती हूँ, ताकि अभी कोई कंफ्यूज है तो वो याद कर ले कि इशारे क्या हैं। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना, फ़अलत। अब मुदारिक में आते हैं। यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु, तफ़अलु। इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू, फ़ाइलुन, मफ़ऊलुन, फ़िअलुन। ठीक है। इसी तरह से फतहा का टेबल हैंड रेस कीजिए, आप में से कौन सुनाएगा इशारों के साथ। सिस्टर मेमूना यासिर, आप माइक ऑन करके सुनाइए। मेमूना यासिर, आप माइक ऑन करना। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फतह, पढ़िए। फतहु, फतहता, फतहतु, फतहतुम, फतहना, फतहत। यफ्तहु, यफ्तहूना, तफ्तहु, अफ्तहु, तफ्तहूना, नफ्तहु, तफ्तहु। इफ्ताह, इफ्ताहु, ला तफ्ता, ला तफ्तहु, फातिहुन, मफ्तूहुन, फतहुन। आवाज नहीं आ रही है। ताजा का बंद हो गया सब कुछ। टीचर का शायद स्टॉप हुआ है। रिमूव हो गई है सारी। अभी आ जाएंगी मेरे ख्याल में। अच्छा कमल, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ जी।
आपने अपनी वर्क बुक अगर कंप्लीट कर ली है तो काइंडली मुझे एक दो चीजें थोड़ा कंफ्यूज करी थी, आप उसमें मेरी हेल्प करेंगी? हाँ जी, आप बता दें, मैं बता दूंगी। वैसे अभी मैंने उसको ना नीट नहीं किया, मैंने जस्ट उसको पहले पेंसिल से किया है सारी, मैंने भी और सारी हुई भी पेंसिल नहीं है, से ही। हाफ से ज्यादा हो गई है। हाँ जी। अच्छा, मैंने भी पेंसिल से ही किया है। अच्छा, ठीक। हाँ जी, वो आप बता दें मुझे, आप बेशक तो मैसेज कर दें पेंसिल से मुझे। ही करना है, साजा ने कहा था अस्सलाम पेंसिल से वालेकुम ही करना सिस्टर्स, आप मुझे सुन रहे नहीं, हैं? मुझे पता पेन से करेंगे। जी है। जी जी टीचर, आप सुन आवाज रहे आ हैं, रही है बोलिए आपकी। बोलिए। सो सॉरी, कुछ इंटरनेट डिस्कनेक्टिविटी हो गई थी। आखिरी 2-4 मिनट ही आपके चाहिए बस, इंशाल्लाह 3-4-5 मिनट में हमारा लेसन तो एंड हो ही चुका है। ठीक है, उससे भी पहले तो हम यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। और कौन सी सिस्टर नजमा से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि वो जी अगर टेबल टीचर। पढ़ सकें। ओके टीचर। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की, नसरतु उस औरत ने मदद की। यंसुरु वो मदद नसरत, करता है। नहीं सिस्टर अगेन, मोनस के लिए क्या लफ्ज है? नसरत उस औरत ने मदद की। अब ठीक है। यंसुरु वो मदद करता है या वो मदद करेगा। यंसुरूना वो सब मदद करते मैम हैं। आपके तंसुरु एक्शंस नजर नहीं आ रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलने दें, अभी मैं करवाती हूँ प्रैक्टिस। तंसुरु आप मदद करते हैं। अंसुरु मैं मदद करता हूँ। तंसुरूना आप सब मदद करते हैं। नंसुरु हम सब मदद करते हैं। तंसुरु वो मदद करती है। उनसुर वो मदद कर। उनसुरु मदद करो। लतंसुर मत मदद कर। लतंसुरु मत मदद करो। नासिरुन मदद करने वाला। मंसूरुन जिसकी मदद की। नसरुन मदद करना। वेरी गुड, कोई बात नहीं, इट्स ओके। इशारे तो मैंने शुरू में भी बताए हैं, जहां मैं नजर नहीं आ रही होती वहां आप खुद इशारे प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब तो लफ्जों की सब पहचान होने लगी है। इट्स ओके। जी गौरवा टीचर। के टेबल में हम किन से सुनेंगे इंशाल्लाह? सिस्टर फरहीन अनवर, आपने सुनाया है अभी टेबल सिस्टर फरहीन? नहीं, मैंने नहीं सुनाया। जी आप सुनाइए, आप सुनाइए। दौरा बाप सिर्फ अरबी पढ़ लूं या सिर्फ ट्रांसलेशन भी जैसे साथ आप कर? आसानी समझें, लेकिन इशारे नहीं छोड़ने। जी, इशारे साथ करिए। दौरा बाप, दौराबू, दरabta, दरabtu, दरabtum, दरabना, दराबत, यद्रिबू, यद्रिबूना, तद्रिबू, अद्रिबू, तद्रिबूना, नद्रिबू, तद्रिबू, अद्रिब, इद्रिब, इधर। इद्रिब। सॉरी, इद्रिब, इद्रिबू, ला तद्रिब, ला तद्रिबू, दारिबुन, मदरूबुन, दरबुन। वेरी गुड, अच्छा जी माशाल्लाह। इसी तरह समय का टेबल जो है वो सिस्टर से हम सुनते हैं, सिस्टर अंबर सुल्ताना। नहीं, सिस्टर अंबर का हैंड रेज नहीं है, आई एम सो सॉरी। सिस्टर शबाना असगर, आप सुना चुकी हैं? नहीं, मैंने नहीं सुनाया। सुनाइए, प्लीज सुनाइए। समिया उसने सुना, समी उन सबने सुना, समीता आपने सुना, समी तुम मैंने सुना, समी तुम आप सबने सुना, समीना हम सबने सुना, समीअत उस औरत ने सुना। यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सुनते हैं, नस्माऊ हम सुनते हैं, तस्माऊ वो सुनती है, सुनेगी। इस्मा इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो, सामिउन सुनने वाला, मस्मून जिसको सुना गया, समउन सुनना सुनना। वेरी गुड। तो मेरी सिस्टर अभी एक बात करी थी, बहुत प्यारी सिस्टर के, इशारे नजर नहीं आ रहे। एक बार मैं ये टेबल इशारों के साथ फिर आपको करके बता देती हूँ। ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। समिआ, समिउ, समिअता, समिअतु, समिअतुम, समिअना, समिअत। यस्माउ, यस्माउना, तस्माउ, अस्माउ, तस्माउना, नस्माउ, तस्माउ। इस्मा, इस्माउ, ला तस्मा, ला तस्माउ, सामिउन, मस्मूउन, समउन। ये है जी 21 लफ्जों का टेबल, और उसको याद करना शुरू कर दें। ये मत सोचें अभी कुछ दिन है, बहुत कम दिन है, आप प्रैक्टिस करें। अगर प्रैक्टिस आप कॉन्टिन्यूसली रोज थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं फिर बहुत दिन है, लेकिन अगर आप एक ही दिन पे छोड़ देंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी।
ठीक है। और मिड की तरह से जो है ना वो हमने पहले से ही टाइम मैनेज करें। मिड में कुछ लोगों की जनरल कुछ ऐसी रीजंस थी, उन्होंने टाइम ले लिया था कि हम मिड क्विज बाद में करेंगे, इसमें वो नहीं होगा। फाइनल क्विज उसी डेट को होगा क्योंकि हमें उसी हफ्ते रिजल्ट अनाउंस करना है। तो अगर किसी का कोई ऐसी रीजन है तो वो पहले बात करेगा, ठीक है। सो ये जेब में रखें। तो लेसन 19 तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिया, और मैंने आपको बताया था असल QC 119 पे मुकम्मल हो जाता है, यानी कॉन्सेप्ट मुकम्मल हो गए हैं। और सब चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं वो यहाँ लिखी हुई हैं आपके सामने। और कुरान के शुरू में आपको बताया था 41,111 लफ्ज़ हम इस कोर्स में सीख रहे हैं, जो 232 वर्ड्स हमने सीखे हैं जो कुरान में रिपीटेडली 41,000 से ज़्यादा बार आए हैं। यानी 50,000 से ज़्यादा पे हमारे दिमाग की बैटरी पहुंच चुकी है। और 78,000 में से 41,111 अगर आप माइनस करें तो आप ज़्यादा सीख चुके हैं और कम बाकी हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये 19 घंटे जो आपने गुजारे हैं ये बड़ी कामयाबी के थे। और अगली क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है कि आपको तरीका समझाया जाएगा कि कैसे आप ये 50% लफ्ज कुरान से निकालेंगे, ढूंढेंगे, और अपने आप को आप साबित कर पाएंगे कि आपको वाकई 50% आधे से ज्यादा लफ्ज आ चुके हैं। तो वो एक्टिविटी हम क्लास में करेंगे, और हमारी रिवीजन भी साथ होगी अगले बुध को। तो आप क्लास में मौजूद रहें ताकि आपके 20 लेसन शॉर्टली बेसिक चीज़ों पे बात हो जाए और आपकी तैयारी आसान हो जाए। और फिर उसी इतवार को इंशाल्लाह सेम जो हमने लास्ट टाइम प्लान किया था उसके मुताबिक ही आपका क्विज होगा। और फिर उसी हफ्ते में आपकी रिजल्ट अनाउंसमेंट होगी। तो अपनी वर्क बुक सब चीज़ें मुकम्मल करें। जहाँ कोई क्वेश्चन हो आप सेंड करें अपना क्वेश्चन टाइप्ड फॉर्म में। जो खासतौर पे क्वेश्चंस हैं वो टाइप्ड फॉर्म में भेजा करें ताकि वो अच्छे से प्रिसाइजली समझ आ जाएं और उनको रिस्पॉन्स क्या करना है वो आपसे बात हो सके। और अगर कोई वर्कबुक से रेलिवेंट रहनुमाई चाहिए तो वो हम आपको रेलिवेंट जो सिस्टर्स हैं उनसे आप पता करा दें, आपको आसानी होगी इंशाल्लाह। अल्लाह ने आपको वो मुंतखब किया और आपको तौफीक बख्शी कि आप कोर्स के आखिर तक हिस्सा बने रहे। ये भी बड़ी बात होती है, एक क्लास में दूसरे में आना और फिर छोड़ देना, यानी शैतान जीत गया। तो आपने जीतने नहीं दिया। अल्लाह ताला आपके मेरे ईमान में बरकत अता फरमाए, इल्म में भी, आमीन अमल में भी इंशाल्लाह। और अल्लाह हमसे राजी। आमीन। चलिए जी, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह आपसे बहुत राजी हो। हम तो कोई भी इस काबिल नहीं हम में से कि हम एक दूसरे को कोई बदला दे सकें। रब ही बदला दे और बेहतरीन बदला दे इंशाल्लाह। आमीन दुआओं में आमीन याद रखा इंशाल्लाह। करें। अल्लाह हम सबका आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलामु आमीन। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज। फी थैंक यू, अमानिल्लाह। थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। जी इंशाल्लाह 30 मिनट्स के बाद मैं बताती हूँ आपको। थैंक यू।